Hello everyone, I hope you all are well and doing good. Today we are going to start your accountancy 11th batch and the topic is Awaken the Accountant in You and chapter name is Introduction to Accounting. So in every book of accountancy 11th batch, 11th class, the first chapter is Introduction to Accounting and I'm very excited that you all are very refreshed and after 10th you all are laymen, you don't know anything and you are very keen to know about the accounting. What is accounting and what's the difference between accounting, accountancy, bookkeeping, or the layman word is accounts. So today we all are going to do everything in detail on all these terms. So let's start. uh, First of all, beta, if I ask that the layman word is accounts, which when we meet anyone and when we talk about accounts, so accounts is a layman word. It has no meaning. It's a very routine word. Means when we record any money transactions anywhere, it is called accounts. Means it is accounting. Basically, when we are recording any payment in routine life, you make some payment to anyone, you are receiving something from anyone, you are making all expenses of the routine life. So when we record all these expenses, all these revenues, means all these receipts at some place in a diary, in a copy, anywhere in a computer, it means you're doing accounts in banks, at household, or in routine life. It's very common layman word. You're doing first time commerce, right? But you're very aware about this word accounts. So today we will understand all these terms according to one PPT and one theory notes and one by one step by step ये सब आपके सामने आते रहेंगे. So first of all, what is introduction या what is accounting? The word is introduction because after 10th you don't know anything about accounts, about commerce. What is commerce first of all beta? Because I think बिल्कुल जीरो लेवल से जहां से मुझे कॉमर्स को स्टार्ट करना चाहिए, बीइंग योर अकाउंट्स टीचर, दैट इज अ वर्ड कॉमर्स. As a career profession, you have selected commerce instead of science stream. So what is commerce? Commerce is all about business. Commerce का मीनिंग ये है business or any profession where you want to earn some profits. You're doing everything to earn some profits to make your financial position better year by year. So in commerce, the subjects are accounts, economics, business studies, but in every subjects beta, you're going to uh, you're going to adopt everything. You're going to um, everything that is related with commerce, right? So anything about commerce, if you talk, it is about what is business, what is management. बिजनेस स्टडीज आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज देगी कि बिजनेस को कैसे आपने डिटेल्ड में स्टडी करना है, बिजनेस में हमारी मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए. इकोनॉमिक्स आपको बताएगी कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या है ना. बट दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट कंसर्न नाउ एट दिस टाइम. तो अकाउंट्स क्या है फिर? अगर हम कॉमर्स को बिजनेस मानते हैं और बिजनेस की हर टर्म को क्लियर करने के लिए ही कॉमर्स के ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको इंट्रोड्यूस होते हैं. तो अकाउंट्स क्या है फिर बेटा? अकाउंट्स इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस इन विच गॉड हैज रिटन एवरी टर्म. बिजनेस में जो भी होता है हम उसको अकाउंटिंग की टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं और वहां से उसको समझते हैं, राइट? सो इसको स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन इन सबके मीनिंग को क्लियर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, योर सब्जेक्ट नेम इज नॉट अकाउंट्स, योर सब्जेक्ट नेम इज अकाउंटेंसी. अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सब चीज़ों पे भी डिटेल में बात करेंगे. तो अभी मैं सिर्फ आपको टर्म्स दिखा रहा हूँ. अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट नेम, जैसे साइंस इज अ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट. सो इन कॉमर्स द मेन सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी. तो accountancy includes all that knowledge, systematic knowledge, principle, techniques, theory, formulas, equations that we have to use while doing accounting.
सो आपके सब्जेक्ट का नेम अकाउंट्स नहीं है, पहले तो हमें ये समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज बीइंग ए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि मुझे अकाउंट्स का ट्यूशन ज्वाइन करना है. इट्स नॉट अकाउंट्स, इट्स अकाउंटेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड दिस अकाउंटेंसी कंसिस्ट टू टर्म्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. बुक कीपिंग वेयर इज फर्स्ट टर्म, एक लेवल है जहां तक हम बुक कीपिंग करते हैं, एंड वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स. These are the two techniques of doing accountancy. So you are going to be a student of accountancy, yes, which is a systematic knowledge about bookkeeping and accounting. So जब हम इसका numerical part करते हैं, that's bookkeeping and accounting. But जब हम देखते हैं कि what are the basics, accounting standards, concepts, formulas, everything which you will do in bookkeeping and accounting in almost +1 +2 in graduation classes, that is a total overall it is a wider term accountancy. Then फिर अभी हम डिटेल में बात करते हैं. आई विल डू समथिंग ऑन बोर्ड. चलिए पहले हम व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे सब चीज़ों को, देन वी विल गो इन नोट्स, थ्योरी नोट्स में जाएंगे, और फिर वापस हम यहाँ पे आएंगे इस पीपीटी के अंदर. ये सब कुछ आज की क्लास में होगा. एंड बेटा जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट क्लास में समटाइम्स वो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाते, अभी तो जस्ट ये फर्स्ट लेक्चर है. डे बाई डे स्टूडेंट्स विल ज्वाइन विद अस, तो हर कोई एवरीवन विल टेक दिस लेक्चर. तो जो भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं बेटा, इस लेक्चर को कंप्लीट सुनना. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये लेक्चर इंटरेस्टिंग होता जाएगा. थोड़ा स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल रहेगा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये इंटरेस्टिंग होता जाएगा. और इस लेक्चर के एंड तक आई गारंटी बेटा, इस लेक्चर के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका फुल ईयर का सिलेबस क्या है. बिकॉज आज मुझे आपको बहुत ज़्यादा टीच नहीं करना है, बट आपको मुझे ये सिखाना है कि जहाँ पर आप हो, अकाउंटेंसी जिसको सीखने के लिए आज आप आए हो, आज आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, वो क्या है. बिकॉज आफ्टर 10th हमें कुछ नहीं पता. हमारे जो 10th के सब्जेक्ट्स थे, हमारा माइंड अभी भी वहीं घूम रहा होगा, वहीं पर होगा. तो मुझे वहां से आपको शिफ्ट करना है कॉमर्स के अंदर. तो आज का मेरा टारगेट यही है, अवेकन द अकाउंटेंट इन यू. आपके अंदर जो नॉलेज है मुझे उसको बाहर निकालना है, और उसको मुझे सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना है और आपको सिखाना है. और साथ में बताएंगे ये टर्म्स की तो हम बात करेंगे, बुक कीपिंग, काउंटिंग, अकाउंटेंसी. एंड देन बुक कीपिंग का एक मीनिंग आएगा कि बुक कीपिंग क्या है. बुक कीपिंग का बेसिकली सिंपल मीनिंग है बेटा, बुक्स को बनाना, सिंपल. जब हम अकाउंट्स या अकाउंटेंसी की बात करते हैं, अकाउंट्स एक लेमन वर्ड है, यू कैन यूज इन रूटीन लाइफ. अकाउंटेंसी हमारा एक प्रोफेशनल नेम है सब्जेक्ट का. तो व्हेन वी टॉक अबाउट बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग का मीनिंग बुक्स को बनाना, बुक्स प्रिपेयर करना. किसकी बुक्स बनाना? बिजनेस की बुक्स बनाना. तो इसकी एक डेफिनेशन आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस डेफिनेशन फ्रॉम थ्योरी नोट्स. अभी मैं ओपन करूँ नोट्स. फिर हमारे पास अकाउंटिंग का एक मीनिंग आएगा. अकाउंटिंग इज ए ब्रॉड मीनिंग, ब्रॉड टर्म, बट मैं इसके ऊपर आज बात नहीं करूंगा. आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ बुक कीपिंग की डेफिनेशन, और उस डेफिनेशन में जितने भी वर्ड्स आते हैं, जैसे बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ऐसे वर्ड्स आएंगे बेटा. तो उन एक एक वर्ड को हम समझेंगे, क्योंकि एक एक वर्ड के अंदर एक एक चैप्टर इंक्लूड है. एक एक टर्म जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट डे से ही आपका फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कॉमर्स का या अकाउंट्स का जो फर्स्ट ईयर है वो कैसे स्पेंड कर रहे हो, कैसे या प्रोफेशनली कितना कर रहे हो. यहाँ आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनर की जरूरत है, एक टीचर, एक्सपीरियंस टीचर का नीड है. इसे प्रोफेशनली अभी करना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है बेटा, +2 में आकर हर कोई, एवरीवन वांट प्रोफेशनल टीचर, बिकॉज वो एक सीबीएसई बोर्ड है, वहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड बातें हो रही हैं, कंपटीशन है, बट उसका बेस तो +1 है ना. यहाँ पे अगर आप सीरियसली इन सब बातों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, और जिस वे में मैं आपको समझाऊंगा आफ्टर माई सो मेनी ईयर्स रिसर्च ऑन एवरीथिंग, तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी उस वे में समझना, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा. और मैं कहीं भी बेटा, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं मैं बेसिक्स के लिए फेमस हूँ स्टूडेंट्स के बीच में. हर चीज़ को हम बेसिक्स के थ्रू करवाते हैं, कहीं भी कोई क्रैमिंग नहीं होती. आप बस अकाउंट्स को सुनते जाएंगे, मेरे से प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा, समझ आता जाएगा. आपको कुछ भी ऐसा नहीं कि क्रैम करना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस का नहीं होगा थोड़ा सा आपको. सो बुक कीपिंग के अंदर जब हम जाएंगे तो इसकी एक ही टर्म की बात करेंगे. एक लेमन के तौर पे बोल सकता हूँ कि जब मैं बुक्स बना रहा हूँ तो दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग. अगर घर पे आपके मदर या आपके फादर जो भी पेमेंट्स करते हैं किसी को भी, या उनको जो भी इनकम होती है, अगर आपके पेरेंट जॉब कर रहे हैं या उनका बिजनेस है या वो किसी प्रोफेशन में है, तो एक इनकम होगी जो उनको आती होगी, वहां से रिसीट्स होंगी. और
वो फिर सब एक्सपेंडिचर्स करते हैं, अपने अपने प्रोफेशन के भी और घर के एक्सपेंडिचर्स भी कर रहे हैं वो, तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं तो लिख रहे होंगे। इट मीन्स वो बुक कीपिंग कर रहे हैं। बस हमें कॉमर्स में आकर एज ए स्टूडेंट इसको एक सिस्टमेटिक वे में सीखना है कि प्रोफेशनली ये कैसे होती है। बट इसका सिंपल मीनिंग है, बिजनेस की बुक्स में बिजनेस की हर एक इवेंट को, हर एक ट्रांजेक्शन को, जो भी बिजनेस में होता है उसको रिकॉर्ड करना। फिर इस पर हम डिटेल में आएंगे। देन अकाउंटिंग बात आज हम नहीं करेंगे, बिकॉज अकाउंटिंग एक ब्रॉडर टर्म है। बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग आती है। तो आपका जो फुल ईयर का सिलेबस है बेटा, उसमें 80% या 90% यू कैन से बुक कीपिंग है, और 10 to 20% अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का मीनिंग रिजल्ट्स निकालना। जो पूरा साल मैंने बुक कीपिंग की है उसके एडिशन में, देखो अगर आप फुल ईयर हार्डवर्क करते हो, एग्जाम्स देते हो बेटा, तो यू एक्सपेक्ट रिजल्ट ना। अगर सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर ना करे तो आपके एग्जाम्स का बेनिफिट क्या हुआ। तो ऐसे ही अगर बुक कीपिंग हम करते हैं, फुल ईयर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्या मेरे पास आया, क्या मैंने पे किया, उसका एक रिजल्ट होता है प्रॉफिट या लॉस की फॉर्म में। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मुझे ये मुझे देखना है। और मेरे बिजनेस का एट द एंड ऑफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो सब कुछ आएगा अकाउंटिंग के अंदर। एंड देन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस आता है। तो थोड़ा सा हम इन सब चीजों को ना आज लिटिल बिट, जैसे एक एक लाइन, दो दो लाइंस के ऊपर बात करेंगे, जितना का आपको फर्स्ट डे समझ आता है। फर्स्ट डे इज वेरी टफ ना, क्योंकि आप बिल्कुल लेमैन हो, आप बिल्कुल जीरो हो, आपको कुछ भी नहीं आता अकाउंट्स के बारे में, और मुझे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है आपके साथ। तो वर्ड्स क्या होने चाहिए, वो बड़े लिमिटेड होते हैं हमारे। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस पे बात आएगी कि फिर होता क्या अकाउंटिंग प्रोसेस, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। कि अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसका फर्स्ट प्रोसेस है बुक कीपिंग, और सेकंड प्रोसेस इटसेल्फ अकाउंटिंग। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, तो वो बात आएगी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो मैं आपको ये सारे स्टेप्स एक बार इन ब्रीफ बता दूंगा। डिटेल में जाएंगे हम, बिकॉज डिटेल में तो एक एक चैप्टर है इनके ऊपर। पूरा सिलेबस आपका यही है बेटा, ये जो आपके सामने ये बना के दिया हमने आपको, यही आपका सिलेबस है बेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। तो ये 1 2 3 4 5 6 जितने स्टेप्स हैं, ये अकाउंटिंग साइकिल है। ये आपके लिए आपका +1 का सिलेबस है, और इसी को बोलते हैं फाउंडेशन बैच। +1 इज ऑलवेज ए फाउंडेशन बैच। एडवांस सिलेबस +2 में आता है, लेकिन वो किसको कितना समझ आएगा +2 के अंदर, चाहे आप मेडिकल फील्ड में हो, नॉन मेडिकल स्ट्रीम ले रहे हो या कॉमर्स ले रहे हो, इन एवरीवेयर बेटा +1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो डिपेंड करता है कि आपने किन टीचर्स से किस लेवल का ट्रेनिंग लिया है, कितना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सॉलिड है, तभी उसके अकॉर्डिंगली आपको +2 में बात समझ आएगी, उसका डेप्थ +2 में जाके समझ आएगा। इसलिए आप यहाँ से आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है, और ये आपका फुल ईयर का सिलेबस है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आपको अभी आज के लेक्चर में बताऊंगा, फिर हम फीचर्स पे आएंगे। बट मैं कुछ भी थ्योरेटिकली नहीं कराऊंगा, डोंट वरी। फर्स्ट डे स्टूडेंट्स को अगर थ्योरी कराई जाए थोड़ा बोरिंग हो जाता है, और उसको समझ भी कम आता है। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा विद माई एग्जाम्पल्स, एक बड़ी सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ। हमारी सराउंडिंग से जो एग्जाम्पल्स मिलती है हमें, आसपास की एग्जाम्पल से हम बात करेंगे। मैं थ्योरेटिकल वर्ड्स नहीं बोलूंगा, आई नो, क्योंकि आपको समझ नहीं आएंगे आज। लेकिन अल्टीमेटली हम इस थ्योरी को समझेंगे। हमारी थ्योरी क्लासेस होती हैं सेपरेट से, बिकॉज आपको 30 to 40 मार्क्स का थ्योरी पार्ट आता है एग्जाम में। तो उसके लिए थ्योरी क्लासेस हम अलग से ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस उस लेवल पे जाके जब आप मेच्योर हो जाते हो, जब आप इन वर्ड्स को प्रैक्टिकली देख लेते हो न्यूमेरिकल्स के थ्रू। तो ये थोड़ा सा हम आज यहाँ तक बात करेंगे कि इनके मीनिंग्स क्या है, सिर्फ मीनिंग तक कि मीनिंग क्या है इनका, सेकंड का, फिर उसके बाद थर्ड रिकॉर्डिंग का। यहाँ आकर मेरा लेक्चर ओवर होगा बेटा, ये जहाँ हम बात करेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है। बिकॉज बुक कीपिंग का एक ही पर्पज है, आपको क्या सिखाना, रिकॉर्डिंग। किस चीज की रिकॉर्डिंग, बिजनेस में जो भी होता है, बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, उन सब का आपको ये सिखाना कि उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो मेरा लेक्चर यहाँ पे ओवर होगा। तो अभी जो आपको 90 मिनट्स का क्लास मिलेगा बेटा अबाउट, तो उस 90 मिनट्स की क्लास के अंदर, ये तो मैं जस्ट आपको इंट्रो दे रहा हूँ अभी। तो उसके बाद जो 90 मिनट्स का क्लास होगा, फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई व्हाइट बोर्ड। वहां पे मैं बाई हैंड लिखूंगा +1 बुक कीपिंग, और वहां से मैं आपको समझाता हुआ नोट्स में एंटर करूंगा, और नोट्स के बाद हम वापस यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे लाके लेक्चर को ओवर करेंगे। ओके एवरीवन, तो अभी जस्ट इंट्रो था ये पार्ट कि हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और जो आज के लेक्चर से अंडरस्टैंड करोगे वही आपका फुल ईयर का सिलेबस है। बिकॉज आई बिलीव एज ए टीचर बेटा, इट्स माई 20 years ऑफ टीचिंग, तो इट्स माई 21st ईयर, मीन्स 20 years कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने इस 20 years में एक चीज हमेशा एज ए पैशन देखी है कि अगर एक स्टूडेंट को ये पता हो ना कि करना क्या है,
करने के लिए पूरा साल होता है बेटा, बट फर्स्ट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा मोटिव क्या है, हमारा टारगेट क्या है, वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन, वो इंटरेस्ट फर्स्ट डे क्रिएट होता है और डे बाई डे वो फिर इंक्रीज होता है। तो आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि हमारी अकाउंट्स क्या है ना, और उस अकाउंट्स के अंदर जो टर्म्स है, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, उनके मीनिंग क्या है। और फिर सेकंड लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोई भी स्टूडेंट बेटा सेकंड लेक्चर मिस नहीं करेगा, क्योंकि वहां मैं आपको वर्ड के जो दो वर्ड्स हैं, डेबिट क्रेडिट, इस इन दो वर्ड्स है बेटा, इन दो पिलर्स के ऊपर हमारा पूरा जो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी रखा हुआ है ना। गॉड हैज रिटन दीज टू वर्ड्स, यू कैन से, इन दो वर्ड्स के थ्रू वो पूरी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को डिफाइन करते हैं। दैट इज अ ओवरऑल टूडेज कॉन्सेप्ट, टूडेज लेक्चर। अभी मैं 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहा हूँ, बिकॉज अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, इट्स फर्स्ट डे, तो अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो अभी कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, दे आर ज्वाइनिंग, तो बस उसके बाद 5 मिनट्स के बाद स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वाइट बोर्ड। ओके एवरीवन, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। So I start from here. In +1 we will talk about bookkeeping. That's our syllabus. आपके सब्जेक्ट का नेम क्या है बेटा? If I ask from all of you, कौन सा सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया आज? अकाउंटेंसी। अच्छा, कोई और नेम है इसका अकाउंटेंसी का? फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। एनीथिंग एल्स? अकाउंट्स। अकाउंट्स, ओके। सो इसका जो प्रोफेशनल नेम है अकाउंट्स इज नोवेयर बेटा। अकाउंट्स कुछ होता ही नहीं है। अकाउंट्स वही जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि हम अपने एक लेमन लेवल पे से मुझे ये देखना है कि मेरे घर के कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, और वेन एवर आई पे एनी एक्सपेंडिचर, आई पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, आई पे फॉर पेट्रोल, आई पे फॉर माई चिल्ड्रन स्कूल फीस या एनीथिंग विच आई पे, दैट आई राइट समवेयर। होता ना ऐसा बेटा, मम्मा भी आपके अकाउंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं? अकाउंट्स बहुत ही एक लेमन वर्ड है जो हम सब लोग कर रहे हैं, उसके लिए आपको ट्यूशन पढ़ने की नीड ही नहीं है ना। ये तो हम अपने घर से सीख सकते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे। एवरीथिंग इज नोटेड इन अ डायरी और समवेयर एल्स, वट एवर दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन हाउस होल्ड वर्क या हाउस होल्ड नीड्स, वो सब कुछ लिखा जाता है। तो अकाउंट्स वहां से स्टार्ट हो जाती है। एंड एज पर माई टीचिंग इज कंसर्न, मैं आपको ये समझा रहा था, इन बिटवीन वो बात कुछ रहेगी कि ऑलवेज मैं ट्राई करूंगा कि मुझे अकाउंट्स को आपके अंदर से निकालना है, बिकॉज बेटा हम सबको अकाउंट्स ऑलरेडी आती है। जैसे हम बाकी चीजें सीखते हैं ना, इसे सीखने की नीड नहीं है, इट्स ए आर्ट। जैसे हम थ्योरी में आगे जाएंगे ना, तो आगे थ्योरी आएगी, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट, इट इज ए साइंस। ये वो साइंस है, ये वो आर्ट है जो हम सबको ऑलरेडी आता है, गॉड गिफ्टेड है। दैट्स वाई आपको मेरे साथ बेटा ये 1 मंथ स्पेंड करना है। हमने आपके लिए 1 मंथ का डेमो क्लासेस इसलिए ऑर्गेनाइज किया है, आपको कोई हेजिटेशन नहीं चाहिए। 1 मंथ स्पेंड कर, आफ्टर 1 मंथ यू विल बी एबल, आपके पास जो नॉलेज होगी ना बेटा, वो नॉलेज बहुत ज्यादा मैच्योर होगी और आप अपनी क्लास में सबसे आगे रहोगे। दैट्स माई फर्स्ट डे कमिटमेंट। जब हम अकाउंट्स यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं, ड्यू टू माई रिसर्च, आप क्लास में सबसे आगे रहते हो नॉलेज के अंदर। हाँ, अब आपका रिमेम्बरिंग पावर कितना है, आपको कितनी बात याद रहती है, प्रैक्टिस कितना है, उस पर आपके रिजल्ट्स आएंगे। बट नॉलेज वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज यू विल बी अहेड। सो बिकॉज हमने अकाउंट्स को याद नहीं करना है। मोस्टली क्या होता है बेटा, जब आप +1 में जाते हो, इट्स अ वेरी न्यू सब्जेक्ट, तो आप फॉर्मुलेशंस में जाते हो, फॉर्मूला याद करते हो, एप्लीकेशंस को याद करते हो, बार बार लिखते हो। हमें ऐसा कुछ नहीं करना। कितनी मजे वाली बात है बेटा, कितना मजा है इसमें, कितना एंजॉय है कि हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना है जो ऑलरेडी हमारे कहीं ना कहीं अंदर है। मैं कोई भी एग्जांपल यूज करूंगा बेटा, विद इन मंथ आपको समझ आ जाएगा कि फुल ईयर का टीचिंग कैसे होने वाला है। वो सारी की सारी एग्जांपल बेटा सराउंडिंग होंगी। दिया ने तो लेक्चर देखेंगे 5 लेक्चर्स, तो शी हैज सम एक्सपीरियंस कि किस टाइप की एग्जांपल्स होती हैं। तो दिया आपको समझ आया रिकॉर्डिंग्स में से ऑलरेडी जो आपने आपके साथ शेयर की थी मैंने? दिया यस सर। आपको रिकॉर्डिंग्स में से समझ आया जो मैंने शेयर की थी आपके साथ? यस सर। तो आज बेटा उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अकाउंट्स जो है ये हम घर से देख रहे हैं कि कोई भी कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा है।
आपकी मम्मा ने कुछ भी स्पेंड किया, वो एक नोट कर लिया कि अप्रैल मंथ का हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। फिर वो पैसा कहाँ से आता है? आपने बातों बातों में ना पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज मुझे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी करना है। आज हमें अकाउंट्स के अंदर बस एंटर करना है, हमें कुछ सीखना नहीं आज की क्लास में, बहुत ज्यादा टीच नहीं करूंगा मैं, बट मैं आपको ले आऊंगा वहां पे जहां पर आप नहीं हो इस टाइम। आप अभी 10th क्लास की है, वहां का SST साइंस मैथ्स आपके माइंड में चल रहा है अभी भी, लेकिन कॉमर्स इज टोटली डिफरेंट। तो आज का क्लास बेटा इस चीज को लेकर डेडिकेटेड है कि हमें वो सब चीजें समझनी है कि कॉमर्स में क्या होगा। स्पेशली आज का जो लेक्चर है वो अकाउंट्स के ऊपर है। अकाउंट्स में क्या होगा, जब आपको ये समझ आ जाएगा कि अकाउंट्स क्या चीज है, इसे हम कैसे समझते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो। तो इसलिए आपको ना हर एक क्वेश्चन का आंसर देना बेटा, पार्टिसिपेशन इज मस्ट। तो माय क्वेश्चन इज कि अगर आपके घर पे एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो नोट किए जाते हैं, आपके पेरेंट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, आपका स्कूल फीस पे कर रहे हैं, एवरीथिंग दे आर पेइंग, तो वो पैसा आता कहां से है? From salary, earnings, अर्निंग्स का नेम है बेटा, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अर्निंग कहां से होती है। तो आपके पास 3 आंसर्स from होने चाहिए। job, फ्रॉम जॉब, दैट profession, इज सैलरी। business, professional. वेरी गुड बेटा। सो दीज आर द 3 आंसर्स। ऑल ओवर वर्ल्ड में बेटा ये 3 आंसर्स हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया में 3 आंसर्स हैं। अगर आप यूरोप, एशिया किसी भी कंट्री में जाएंगे, वी हैव 3 आंसर्स। एनीवन विल से कि सर पापा को सैलरी मिलती है, वो जॉब करते हैं, वहां से अर्निंग होती है हमारी, देन वी पे। आपके पापा को 50,000 सैलरी मिलती है, तभी तो आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, पेट्रोल, फ्रूट्स, ग्रोसरी, कितना कुछ है एक्सपेंडिचर हमारा। तो हम 2 वर्ड्स को बेटा देखो बातों बातों में समझ रहे हैं, जो हमारे अकाउंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्या? अर्निंग, रिसीट्स, पैसा आ रहा है, एंड सेकंड क्या? Expenditure. Expenses. एक्सपेंसेस, यस। और इन दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है ये देखने के लिए कि हमारे पास सरप्लस कितना है। समटाइम्स होता है बेटा सैलरीज 50,000 बट घर का एक्सपेंडिचर 60,000 है, 70,000 है, तो हमारे पास डेफिशिएंसी आ जाती है। तो बिजनेस में भी बेटा हमें यही सब चीजें समझनी है कि बिजनेस का अर्निंग कहां से है। तो इसलिए मैं अब आपकी पर्सनल एग्जांपल को छोड़ देता हूं, बिकॉज हमें जॉब या सैलरी की बात नहीं करनी है, बिकॉज हमें जो बुक्स बनानी है वो बिजनेस की बनानी है। और सेकंड आपका आंसर हो सकता है कि सर माय फादर या माय मदर इज इनटू ए प्रोफेशन, वहां से उनको फीस मिलती है, इज एन एडवोकेट, एडवोकेट को फीस मिलती है, डॉक्टर्स को फीस मिलती है, तो उनकी अकाउंट्स थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनती है, तो हम उनकी भी बात नहीं कर रहे। तो इट मींस हमारा पूरा फोकस किस पे हो गया, जहां 95% जो सिलेबस है हमारा दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यस, तो अभी हम जॉब सैलरी को साइड पर रख देते हैं, प्रोफेशन की फीस को साइड पर देते हैं। इट मींस मैं आई एम इनटू ए टीचिंग प्रोफेशन, तो मेरी इंस्टीट्यूट के जो अकाउंट्स हैं वो लिटिल बिट डिफरेंट है तो सेम पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बनते हैं। वो आपको आगे के समझ आ जाएगा कि प्रोफेशंस के अकाउंट्स किस बेसिस पे बनते हैं और बिजनेस के अकाउंट्स किस बेसिस पे। थ्योरी में सब कवर होगा बट न्यूमेरिकल पार्ट आपका सिर्फ बिजनेस का है। तो अब मैं बिल्कुल मेन बात पे आ रहा हूं। बिजनेस के अंदर बेटा जब भी हमें कुछ भी रिकॉर्ड करना होता है उसके लिए हमारे अकाउंट्स का फर्स्ट वर्ड है बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं इसको? एनीवन? Bookkeeping. बुक कीपिंग इज बेटा। एंड सेकंड वर्ड इज अकाउंटिंग। एंड बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इन दोनों में जहां भी आपको नॉलेज की जरूरत है उस वर्ड को बोलते हैं अकाउंटेंसी। अब आपको क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. बिकॉज फर्स्ट डे की जो क्लास है ना ये इसी चीज पे है ना कि आपको ये समझ आती है कि हम करना क्या चाहते हैं। फुल 1 ईयर हमारा सिलेबस क्या है, दैट इज ए इंटरेक्शन सेशन। आप वर्ड बोलते हो अकाउंट्स, अकाउंट्स इज नोवेयर। अकाउंट्स तो बोलना ही नहीं आपने, कहीं अकाउंट्स कहीं होता ही नहीं। देयर आर 3 वर्ड्स ओनली, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये तीनों चीजें आज हम आपके +1 में मीन दिस ईयर, नॉट टुडे, इन होल +1 class we will cover these 3 words. So that's why your first chapter is on which? आपका फर्स्ट चैप्टर किस चीज पे है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग।
और अकाउंटिंग से पहले क्या होता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, यस बुक यस। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज बुक कीपिंग। आप चाहो तो कुछ नोट कर सकते हो साथ साथ में, अदरवाइज आई विल शेयर ऑल माई नोट्स हियर। ये एक तो आपकी क्लास ओवर होने के बाद हमने आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है, आप सबने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं तो लेटर ऑन ज्वाइन कर लेना। लिंक शेयर किया हुआ है हमने इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे, क्योंकि फिर इजी रहेगा ना आगे कुछ भी इन्फॉर्म करना आपको। तो विद इन 2-3 डेज हमारा बैच फ्रेम हो जाएगा प्रॉपर। तो यहाँ पर एक तो ये पीपीटी है और सेकंड है हमारे पास ये नोट्स। और क्लास के एंड पे आपको बताऊंगा कि हमने फुल ईयर स्टडी को कैसे करना है, हमारे स्टडी करिकुलम्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको सब कुछ नोट नहीं करना है, जो आपको लगे वो हम नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात। सो नाउ द फर्स्ट लेक्चर इज ऑन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एंड सेकेंड लेक्चर विल बी ऑन अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है? जहां से हमारी अकाउंटेंसी की स्टार्टिंग होती है, जहां से अकाउंट स्टार्ट होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। कैसे? सपोज मेरा एक बिजनेस है और मुझे अपने बिजनेस के अंदर, बेटा एक मिनट के लिए एक फोन कॉल, पीछे मोबाइल आई थिंक रिंगिंग, जस्ट शोर है बेटा स्क्रीन, आपको साउंड आ रही है? यस सर। Yes, sir. जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो इन बिटवीन वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए, सो फर्स्ट वर्ड जो है बेटा बुक कीपिंग है। अकाउंट्स इज नोवेयर, इसलिए ये एक लैंग्वेज जो है, अकाउंट्स वर्ड एक लेमन वर्ड है जो हम अपने पर्सनल लेवल पे यूज करते हैं कि हमें अकाउंट्स बनाने हैं, पर उसका जो प्रोफेशनल नेम है दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी includes all theory part, whatever you want to understand कि अकाउंट्स कैसे होती है, बुक कीपिंग में क्या क्या रूल्स हैं, अकाउंटिंग के क्या क्या रूल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, ये सब कुछ अकाउंटेंसी लिखा हुआ है। बिकॉज अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट, जैसे साइंस इज अ सब्जेक्ट ना बेटा, साइंस इज अ सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, तो हमारा जो सब्जेक्ट नेम है वो अकाउंटेंसी है। तो ऑन वेरी फर्स्ट डे आई वांट टू करेक्ट ऑल ऑफ यू कि आगे से हम ये नहीं कहेंगे कि हम अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं या हमारा +1 में अकाउंट्स का सिलेबस क्या है। नो, आप सब बोलेंगे कि सब्जेक्ट नेम इज अकाउंटेंसी। इट मीन सबसे वाइडर टर्म क्या होगी? इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वाइडर टर्म क्या बनती है? अकाउंटेंसी। Accountancy. यस बेटा, दैट्स वेरी गुड। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी को जब हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं न्यूमेरिकली, then it becomes bookkeeping and accounting. First stage is bookkeeping and second stage is accounting. Accounting. Yes, there is no third stage बेटा। +1 का 80% सिलेबस bookkeeping है and only 20% सिलेबस accounting है। accounting एडवांस हो जाती है थोड़ी सी, bookkeeping बेसिक्स है। तो इट मीन्स आपका जो +1 क्लास है वो 80% किस पे बेस्ड है? बेसिक्स पे, बुक कीपिंग पे, बेसिक्स पे। देन वी कम ऑन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक पर्पस होता है बिजनेस को ये बताना कि प्रॉफिट है या लॉस है बिजनेस में। दिस द अल्टीमेट एम फॉर अकाउंट्स। हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? इफ एनीवन आस्क यू कि व्हाई डू वी मेक अकाउंटिंग, दैट्स ओनली वन सोल पर्पस, प्रॉफिट और लॉस। आई वॉन्ट टू नो, मुझे ये जानना है कि 1 साल के बाद मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बट अकाउंटिंग जानने के लिए हमें फुल ईयर क्या करनी पड़ेगी? बुक कीपिंग। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं बेटा, जो रिजल्ट आता है, से आपका 10th क्लास का रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट किस पे बेस्ड होगा? एग्जाम्स पे बेस्ड होगा। तो आपके जो एग्जाम्स हैं जिसमें आप सब कुछ लिखते हो, रिकॉर्ड करते हो, एवरी क्वेश्चन का आंसर, वो बेटा आपके लिए बुक कीपिंग है। गॉट इट ना? और जब उस आंसर शीट को इवेल्यूएट किया जाता है, एक रिजल्ट निकाला जाता है कि यू गोट 90%, 95%, 98%, व्हाटएवर, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड अकाउंटिंग।
आई थिंक बहुत सिंपल समझ गए आप। बुक कीपिंग फुल ईयर रिकॉर्ड करते हैं हम, फुल ईयर में वो हर चीज रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बिजनेस में हो रही है, एनीथिंग हैपेंस इन द बिजनेस, और अकाउंटिंग उसका एक रिजल्ट है, तो इसलिए वो लास्ट में आएगी। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। क्या बोला बेटा मैंने, बताइए। Accounting starts where bookkeeping ends. सिंपल, जहां पर बुक कीपिंग ओवर होती है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो अभी हम बहुत डिटेल में थ्योरी में जाएंगे। पहले बताइए, ये आपके 15 मिनट्स का सेशन है, आपको इतना समझ आ गया कि हमें करना क्या है फुल ईयर, हमें बुक कीपिंग समझनी है कि बुक कीपिंग क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हैं, और अल्टीमेटली हमें कहां पहुंचना है, अकाउंटिंग पे। ये आपका 11th का सिलेबस है। उसके बाद व्हेनेवर वी विल मीट इन +2 इन बीकॉम इन एनी अदर क्लास बेटा, वहां पे सिर्फ आपको क्या आएगी, अकाउंटिंग। सो बेटा आज तो बेटा ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि +1 का जो ईयर है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर बेटा। आप उसे टाइम वेस्ट या टाइम पास नहीं कर सकते ऐसे ही कुछ भी। यू नीड अ प्रोफेशनल टीचर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और उससे भी ऊपर योर डेडिकेशन। हर एक चीज को सीखने का एक आपके अंदर इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, है ना। एक यू शुड बी क्रेजी अबाउट एवरीथिंग कि मुझे सीखना है, मुझे समझना है, और आपको वो सब कुछ बहुत अच्छे से कराया जाएगा। और आप उसका एक सैंपल देखोगे विद इन 1 मंथ कि हर चीज का हम एक लॉजिक बता रहे हैं आपको, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कर रहे हैं, हम कुछ भी याद नहीं कर रहे। तो ये 1 ईयर आपका फाउंडेशन क्लास है बेटा, बिकॉज बुक कीपिंग आपको लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं आएगी। और जिसको बुक कीपिंग नहीं आती बेटा, गारंटीड है वो +2 में जितना मर्जी ट्राई कर ले, दे कांट स्कोर गुड मार्क्स, बिकॉज अकाउंटिंग समझ से बाहर हो जाएगी उनके। बिकॉज स्टूडेंट डायरेक्टली समटाइम्स +2 में ज्वाइन करते हैं और ये बोलते हैं सर +1 में हमने थोड़ा अच्छे से किया नहीं, ट्यूशन वगैरह भी इतनी बढ़िया नहीं थी, या स्कूल में करवाया नहीं। लास्ट ईयर जैसे एग्जाम्पल था, एकदम से कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ, इस टाइम +2 में ऐसे ऐसे स्टूडेंट है बेटा जिन्होंने +1 में प्रॉपर किया ही नहीं है। अब वो लोग सब वीक हैं, उन सबको अलग से हम कुछ क्लासेस दे रहे हैं उनके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिकॉज उसके बिना काम चलेगा नहीं उनका। लेकिन जो बेटा 1 ईयर का टाइम आपके पास है उनको मैं कितना दूंगा अलग से, समझ सकते हो ना इसकी इंपॉर्टेंस कि बुक कीपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसको सीखने के लिए हमारे पास बेटा 4 मंथ्स हैं, 4 to 5 मंथ्स बुक कीपिंग के लिए हैं। तो ये फर्स्ट 4 to 5 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इस थ्योरी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, बिकॉज मुझे आज काफी रिक्वेस्ट आई है कि सर आज हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो एक बार तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे और मंडे, बट बाकी जो स्टूडेंट्स थे दे वर रेडी, वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि नहीं सर आज ही स्टार्ट करते हैं, तो हम वेट कर रहे हैं क्लास का, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड। तो अब ये लेक्चर ऐप पे अपलोड हो जाएगा आज शाम को, और यूट्यूब का लिंक शेयर भी कर दिया जाएगा उन स्टूडेंट्स को। बेटा जो भी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे, जो आज एब्सेंट हैं, वो प्लीज इस क्लास को देखकर ही आएंगे। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट कि हमारा अकाउंट्स का सिलेबस क्या है +1 का। तो हमने क्या समझा कि अकाउंट्स एक हमारा घर का वर्ड है, एक लेमन वर्ड है जो हम यूज करते हैं अकाउंट्स। एक्चुअल वर्ड इज बुक कीपिंग स्टेज 1, अकाउंटिंग स्टेज 2। अकाउंटिंग के आगे कुछ नहीं है। और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो भी फॉर्मूलाज, थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज, बेसिक्स यूज हो रहे हैं, वो सब के सब बेसिक्स एक सब्जेक्ट में लिखे हुए हैं, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, केमिस्ट्री या साइंस, इसमें से विच इज ब्रॉडर टर्म, केमिस्ट्री या साइंस? Science. Science. साइंस, बिकॉज साइंस इज ए सब्जेक्ट नेम। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ये सारे जो चीजें ना स्टेजेस हैं बेटा, उसके पार्ट्स हैं। सो केमिस्ट्री इज ए साइंस, फिजिक्स इज ऑल्सो ए साइंस। तो साइंस इज ए सब्जेक्ट नेम। तो हम बोलते हैं साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है, स्ट्रीम्स है बेटा बेसिकली हमारी। तो कॉमर्स या अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर टर्म है। इसके अंदर 2 स्टेप्स आते हैं। तो आज हम पहला वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, बुक कीपिंग। आर यू रेडी एवरीवन? मैंने इस 15 मिनट्स में ट्राई किया है कि आपका एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाए, एटलीस्ट ये समझ आ जाए कि हमें करना क्या है। ये ना हो कि मेरा आज का 90 मिनट्स का लेक्चर आपके ऊपर से जा रहा है ना, आपको समझ ही ना रहा। कई बार होता है ना, एक टीचर अपने ही धुन में लगा हुआ पढ़ा रहा है, उसको पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो नहीं होना चाहिए बेटा। हम कम पढ़ लेंगे लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, और ऐसा कभी होगा भी नहीं। इसलिए आपको मैंने पहले एक स्पेस पे इंट्रोड्यूस किया है कि बेटा आपको करना क्या है, आपका सब्जेक्ट का नेम क्या है। ऐसे जब मैं आपको इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो इकोनॉमिक्स टीचर इकोनॉमिक्स समझाएगा कि वो क्या होता है, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स तो आप लोग पहले से अवेयर हो।
आपके लिए कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली मेन। तो आज हम बात करें अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स इज नथिंग बट दीज आर द 3 वर्ड्स, स्टोरी ऑफ 3 वर्ड्स, जिसमें अकाउंटेंसी के 2 पार्ट हैं। उसमें भी बुक कीपिंग पहले है, अकाउंटिंग बाद में है। अब आई थिंक आप सबका आंसर करेक्ट हो गया ना, क्योंकि पहले सब कोई बोला था अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, वो नहीं बेटा। अब आप सिस्टमेटिकली किसी को समझा सकते हो। अच्छा ये बताओ बेटा, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? ऐसे जस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग? फिर हम नोट्स में आते हैं। Something. बताइए, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है बेटा? मैं बताता हूँ आपको। अंडरस्टैंडिंग वो है बेटा जो आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आज 90 मिनट्स की क्लास को लेने के बाद 5 o'clock आप फ्री हो जाओगे मेरे से, योर पेरेंट्स विल आस्क यू डेफिनेटली, योर मॉम, फादर, व्हाटएवर, कोई भी आपके पास घर में है या बाद में, दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि बेटा आज आपने फर्स्ट क्लास लगाई, क्या कुछ समझ आया आपको, क्या चीज होती है? तो अगर आज हम कुछ ऐसा करें कि 90 मिनट्स में मैंने जो समझाया वो आपको समझ आ जाए, और आप उनको बोलो ओके सिट डाउन, मैं आपको समझाती हूँ या समझाता हूँ क्या हुआ आज क्लास में, तो आप 90 मिनट्स का लेक्चर बोल पाओ। बेटा कितना ज्यादा इंप्रेसिव है ये चीज कि फर्स्ट डे आपको सब समझ आया। दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। तो हमें कुछ ऐसा पढ़ना है कि जो मैं आपको समझाऊं, चाहे मेरे वर्ड्स किसी भी वे में हो, एग्जाम्पल्स में हो, लैंग्वेज कोई भी हो, डजेंट मैटर, आपको बात समझ आनी चाहिए। तो पहला हमें क्या समझा, और आज से बेटा आपको नोट्स भी बनाने हैं। मैं आपको कुछ सेमिनार्स दूंगा। माय रिसर्च इज ऑन अकाउंटेंसी, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो तो सब जानते हैं प्रोफेशनली, बट मेरी कुछ और रिसर्चेज है बेटा, मेमोरी ट्रेनिंग के ऊपर है, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक कैलकुलेशंस फास्ट एंड वेरी इजी। देयर सम रिसर्चेज विद इन 1 मंथ बेटा मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगा, एंड आफ्टर 1 मंथ आप चेंज हो जाओगे। आज आप जो भी हो ना, मैं गारंटी करता हूँ फर्स्ट डे रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग्स पता नहीं कितने स्टूडेंट्स बाद में लेंगे जो आज एब्सेंट है। डे बाई डे जो भी अब बैच में आएगा उसके लिए मस्ट होगा इस रिकॉर्डिंग को सुनकर आना बैच में। तो मैं बेटा आप सबके साथ एक कमिटमेंट कर रहा हूँ, आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ को ज्यादा नहीं होता, 1 ईयर की बात नहीं कर रहा, आफ्टर 1 मंथ यू ऑल विल बी चेंज्ड। आपके अंदर 3 चीजें आ जाएंगी जिसको मैं बोलता हूँ ट्रिपल सी, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन एंड कॉमन सेंस। हमारा कॉमर्स बेटा इस ट्रिपल सी पे बेस्ड है, और कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है। अगर आप उसमें आगे हो गए, टॉपर्स बन गए, तो बाकी 2 सब्जेक्ट्स में तो ऑटोमेटिकली बन जाओगे। पर इन अकाउंट स्पेशली वी नीड कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन एंड कॉमन सेंस। दिस 1 मंथ जो ट्रेनिंग है बेटा आपकी इन तीनों के ऊपर होगी, एंड आई विल शेयर ऑल माई रिसर्चेज विद यू, हाउ टू मेमोराइज, किस चीज को कैसे समझना है इमेजिनेशन को यूज करते हुए, कैलकुलेशंस कैसे फास्ट करनी है, कॉन्सेप्ट्स कैसे बिल्डअप करना है, वो हर चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपको याद होती जाएगी अपने आप ही, क्योंकि वो हम अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझेंगे बात को। तो आज हम बुक कीपिंग के ऊपर एक थ्योरी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर 10 मिनट्स कि बुक कीपिंग क्या है। उसके बाद हम थ्योरी को छोड़ देंगे यहाँ पे। मैं आई विल नॉट गो इन अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, क्योंकि वो सब चीजों को समझना इम्पॉसिबल है फर्स्ट डे, जब तक आप प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली इन बातों को नहीं समझते। वो थ्योरी है। अगर आज मैं आपको 90 मिनट्स थ्योरी कराऊं तो आपके ऊपर से निकलेगी और फर्स्ट डे आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। मुझे आज आपको आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना है अकाउंट्स के अंदर, तो लिटिल बिट थ्योरी लेते हैं 10 मिनट्स के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिसन, यहां से रीड करिए बेटा, ये हमारे नोट्स हैं, साथ में हम पीपीटी को भी ऑन कर देंगे। In order to solve day-to-day business problems, it becomes necessary to have knowledge and information about past, present financial information. गूगल मीट को आप लैपटॉप, टैब या पीसी, मोबाइल किसी पे भी क्लास ले सकते हो। तो आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर नजर आ रहे हैं नोट्स बेटा? आप इसको जूम इन कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कुछ भी। आ रहे समझ बेटा? नोट्स दिख रहे हैं, प्रॉपर रीडेबल हैं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो बुक कीपिंग क्यों बनी थी बेटा? ये बुक कीपिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, क्योंकि बुक कीपिंग जिसको समझ आ गई बेटा, जिसने एग्जाम में सब बढ़िया लिख दिया, क्या रिजल्ट के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है आपको? टेल मी। No, sir. वो तो अपने आप आता है।
हार्डवर्क तो आंसर्स लिखने में है ना, पूरा साल पढ़ने में हार्डवर्क है। देखो अभी जो हम करेंगे, हम फुल ईयर हार्डवर्क करेंगे ना, ये टफ हो सकता है किसी के लिए। फुल ईयर अपने आप को क्लासेस अटेंडेंस टेस्ट में मेंटेन करना, ये बुक कीपिंग बेटा जो हम पूरा साल करते हैं वो बुक कीपिंग है। रिजल्ट्स तो 1 डे में आ जाएगा आपका। तो दैट्स वाई बुक कीपिंग को 1 ईयर दिया गया है आपके पास, कि 1 ईयर में समझो कि बुक कीपिंग क्या है। और बिजनेस की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बुक कीपिंग, बिकॉज बुक कीपिंग के लिए हम बिजनेस की हर इंफॉर्मेशन को, एवरी नॉलेज को रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं एवरीवन बताइए, हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बुक नहीं बेटा, बुक कीपिंग का मीनिंग है बिजनेस की हर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, सो दैट हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक्स में यस, मैं वो पूछ रहा हूँ कि बुक कीपिंग करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? उसके लिए बेटा एक वर्ड आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं इसको? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स। हम उसे अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए वो वर्ड अकाउंट्स बन जाता है सबके लिए लेमन वर्ड। तो इस बुक कीपिंग को हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि बुक कीपिंग होती क्या है। अच्छा, इस बुक कीपिंग को किसने इन्वेंट किया था और कब इन्वेंट किया था, ये भी जानना जरूरी है बेटा, बिकॉज हमारे जो गॉड फादर हैं, बीइंग ए अकाउंट्स टीचर, मैं जिनको फॉलो करता हूँ, ही इज ए गॉड फादर। अकाउंट्स के लिए वो गॉड फादर हैं जिन्होंने बुक कीपिंग बनाई थी। 1494 में ये बुक कीपिंग इन्वेंट हुआ था। इससे पहले बुक कीपिंग था ही नहीं। और ये इतना ज्यादा, इतनी बड़ी इन्वेंशन थी बेटा, जैसे साइंस में इन्वेंशन होती है, इतनी बड़ी इन्वेंशन थी, इतनी बड़ा एक रिसर्च था कि उसे पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। बुक कीपिंग, यू विल बिलीव बेटा, एट द एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे बुक कीपिंग ना होती हो। जो चीज तुम +1 में समझोगे, लर्न करोगे, हर कंट्री में वो सेम है। मीन्स अगर मैं आपको चंडीगढ़ में टीच कर रहा हूँ या मैं आपको अमेरिका में टीच कर रहा हूँ, सेम बात है, वहां पे भी सेम सिलेबस है, क्योंकि बुक कीपिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इन एवरी कंट्री में होगा, ये तो नहीं माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ इंडिया में है, माइक्रोसॉफ्ट ही यूज होता है। अमेरिका के कंप्यूटर में भी क्या है बेटा, माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे ही जहां भी अकाउंट्स की बुक्स बनती हैं वहां बुक कीपिंग फॉलो की जाती है। दैट्स व्हाई दैट ग्रेट पर्सन वाज, क्या है बेटा नेम उनका? लूकस पैसिओली। पैचोली, ऐसे कुछ का, बिकॉज वो इटली के थे। तो अगर आप इसको नेट पे सर्च करेंगे हु इज द फादर ऑफ बुक कीपिंग, तो नेम आएगा लूकस पैचोली, ऐसा कुछ नेम है इनका। हम एज पर इंग्लिश डिक्शनरी हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो लूकस पैचोली, who was resident of Venice, Italy, is regarded as a founder of bookkeeping। तो सबसे पहले तो हमें हमारे अकाउंट्स के जो गॉड फादर हैं उनका नेम पता होना चाहिए। और ये बुक कीपिंग कब इन्वेंट हुई थी? इट वॉज इन्वेंटेड इन 1494। फिर उसके बाद इंग्लैंड में, यूरोप की हर कंट्री में इसके ऊपर रिसर्चेज हुई, है ना। अब इस बुक कीपिंग का मीनिंग क्या था? जब ये बुक कीपिंग 1494 में बनी थी बेटा, तो बुक कीपिंग का मीनिंग क्या था वो हम बात करते हैं। ये बेटा आपके लिए आपका फुल 1 ईयर का सिलेबस बेटा इन 2 लाइंस में लिखा हुआ है। फुल 1 ईयर का सिलेबस, इट्स रिटन इन दीज 2 लाइंस। तो उसको रीड करते हैं। ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे बेटा फर्स्ट डे? नो सर। हाँ, नो सर। थोड़ा सा वेट करें, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा लेक्चर इंटरेस्टिंग होता जाएगा। बिकॉज मुझे स्टार्ट करने के लिए थोड़ा इंट्रो में तो जाना पड़ेगा ना। यू आर वेरी लेमैन, आपको कुछ भी नहीं आता 10th के बाद अभी अकाउंट्स का। देखिए, इट इज सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। पहले इस लाइन का मीनिंग समझते हैं।
इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मैंने आपको पूछा कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग बेटा एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम बिजनेस की एवरी ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस में होता है, ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है? ट्रांजैक्शन मीन्स एनीथिंग विच हैपन्स इन द बिजनेस, जो भी होता है। ये बताओ क्या क्या होता है बेटा बिजनेस में हमारे, क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं? Selling, purchase, Purchasing of furniture, ओके, वन थिंग और बेटा? selling product, rent, electricity bills, वेरी गुड वेरी गुड। और purchasing of goods, ओके, एनीथिंग एल्स? loans, taxes, salaries, यस। तो बेटा ये जितने वर्ड्स आप बोल रहे हो, ये सब वर्ड्स मॉनेटरी टर्म्स में है, मींस मनी टर्म्स में है, या विदाउट मनी टर्म्स है, मींस इसमें क्या कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व है? yes sir, यस। yes sir, ये देयर टू वर्ड्स बेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये दो वर्ड्स बेटा हम यूज करेंगे अकाउंट्स में। क्वांटिटेटिव का मीनिंग होता है जहां पे कोई एक अमाउंट होती है। क्वालिटेटिव होता है क्वालिटीज, जैसे यू आर स्मार्ट, यू आर गुड, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर टॉल, है ना। ये क्या है बेटा? ये आपकी क्वालिटीज हो सकती हैं, बट क्वांटिटी कैसे बताओगे? हाउ मच? वो तो एक आपको अमाउंट वाइज बताना पड़ता है, रुपीज में बताना पड़ता है। तो हम बिजनेस में कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, विच इज इन द मॉनेटरी टर्म्स, मनी टर्म्स। दैट्स बेटा उसका नेम रखा जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं उसको? financial transaction, यस। और इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग तभी कह देते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग है, जो हम अभी +1 में सीख रहे हैं, इसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिकॉज इसके अंदर ओनली दोज हैपनिंग्स आर रिकॉर्डेड विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जिसमें मनी इन्वॉल्व है। फिर ये बुक कीपिंग होती कैसे है, मेरा आज का जो सेकेंड हाफ होगा वो उसके ऊपर होगा। स्लोली मैं आपको लेके जा रहा हूं कि बुक कीपिंग के अंदर मैं आपको एंटर करवा रहा हूँ। सिंपल, अभी आप बिल्कुल लेमन थे, बिल्कुल आउट ऑफ नॉलेज थे। स्लोली हम समझ पाएंगे कि बुक कीपिंग क्या है। इतना समझ आ गया सबको कि बुक कीपिंग इज नथिंग, इट इज ए सिस्टम, इट इज ए आर्ट। हम इसको आर्ट भी कह देते हैं, जैसे पेंटिंग इज एन आर्ट, सिंगिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। तो बेटा बुक कीपिंग भी एक आर्ट है जिसे सिखाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आई एम आर्टिस्ट और आप नहीं बन सकते। मैं बुक कीपिंग किसी को, मुझे पहले मैंने भी सीखा है, आई लर्न हाउ टू मेक बुक कीपिंग। अब बीइंग ए टीचर मैं आपको सिखा दूंगा तो आपको भी समझ आ जाएगी बुक कीपिंग क्या है। तो ये एक ऐसा आर्ट है जो डेवलप किया जाता है आफ्टर 10th। एवरी ईयर वी गेट द स्टूडेंट जो बिल्कुल जीरो होता है, लेमन होता है, तो उसके अंदर ये आर्ट डेवलप करना इट्स वेरी टफ प्रोसेस बेटा। इतना ईजी नहीं है +1 के स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना, उसको समझाना। दैट्स वाई वी नीड एक्सपीरियंस। तो वो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे हम यूज करते हैं। हम आपको कैसे समझाएंगे वो चीज, क्योंकि वो आर्ट जो आपके अंदर है ही नहीं अभी, और मेरे पास वो 100% है विद माई एक्सपीरियंस। तो कैसे मुझे वो हैंड शेकिंग में जाना है, आपके अंदर ट्रांसफर करना है, तो दैट्स वाई। बट जो भी मैं आपको सिखाऊंगा इन 1 ईयर वो एक आर्ट होगा, एक सिस्टम होगा जो मैं आपको समझाता हूं और आपको उसको समझ के यूज करना है। तो बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है, एक सिस्टम है। किसको रिकॉर्ड करने का? सिस्टम ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग business transactions, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो बेटा 3 वर्ड्स हैं, तो अगर मैं आपको इस डेफिनेशन पे 10-15 मिनट्स डिवोट कर दिया जाए तो आई थिंक आप सबको समझ भी आ जाएगी, याद भी हो जाएगी। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ बेटा, आई एम आस्किंग बुक कीपिंग क्या है? यू विल से योर आंसर इज क्या है बेटा? बोलो। system of system of recording business transactions of financial nature, बेटा सारा नहीं, एक इतना सा बस। बुक कीपिंग क्या है तो आपका आंसर होगा recording business transactions, recording business transactions, बेटा नहीं। बुक कीपिंग क्या है सर? इट इज ए सिस्टम या इट इज एन आर्ट। किस चीज का? देन यू विल से रिकॉर्डिंग का आर्ट है। क्या रिकॉर्ड करना है? देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बेटा, मेरा एक ऐसा रिसर्च भी है कि किसी चीजों को याद कैसे करना है। मैं हर टफ से टफ चीज याद कर सकता हूं। आप ना क्वेश्चनिंग सेंस में जाओ, क्या है? सिस्टम है।
किस चीज का? रिकॉर्डिंग का। क्या रिकॉर्ड करना है? आंसर आएगा भाई क्या रिकॉर्ड करना है? क्या करना है? बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं? एनीथिंग हैपेंस इन द बिजनेस इन मनी टर्म्स। सो ट्रांजेक्शंस का नेचर क्या रहेगा? फाइनेंशियल नेचर। तो अब ये 4 वर्ड्स का आंसर चाहिए मुझे आपसे। व्हाट इज बुक कीपिंग? It is an art or a system. किस चीज का? Recording business किसका रिकॉर्डिंग का? क्या रिकॉर्ड करना है? सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने हैं हमें? नहीं। a business transaction. यस, हमें सॉन्ग्स नहीं रिकॉर्ड करने अपने, हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। और वो किस नेचर की होती हैं? Financial. फाइनेंशियल नेचर का मीनिंग क्या होता है? That involve money. Something in monetary terms. यस, वेरी वेरी गुड, मॉनेटरी टर्म्स। अब हम ये लाइन लेक्चर के फर्स्ट 1 मिनट में भी आपके सामने ला सकते थे, तब मजा नहीं आता। बट अब हमें क्लियर है कि अकाउंट्स का मीनिंग बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है, और हम घर में भी वो चीज कर रहे हैं। वेनेवर जब आप कोई एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर रहे हो, हाँ ये है कि घर में हम उसे एक सिंपल डायरी पे लिख देते हैं, पर बिजनेस में वो डायरीज नहीं होती, बिजनेस में वो बिजनेस बुक्स होती हैं। और उन बिजनेस बुक्स के नेम्स हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल नेम्स हैं, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज, बैंक्स, सब लोग आपसे डिमांड करते हैं कि आप बनाओ। घर में तो क्या बेटा, एक डायरी लगाओ, लिखते रहो हमने रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, हमने फूड एक्सपेंस पे किया, आज ग्रोसरी आई, आज वेजिटेबल्स आई, है ना। वो तो एक सिंपल लिखना है। तो जब कोई ये कर रहा है बेटा आपके घर में कोई भी, तब भी वो अकाउंट्स कर रहा है, बट वो अकाउंट सिस्टमेटिक मैनर में नहीं कर रहा। क्या वर्ड बोला बेटा? मैं आपको आगे की तैयारी करवा रहा हूँ। आपके घर में आपके मदर जब भी लिख रहे हैं खर्चों को, एक्सपेंडिचर्स को, वो भी अकाउंट्स कर रहे हैं, अकाउंट्स उनको भी आती है। इट मीन्स ये तो एक हमारे अंदर ही है। तो बेटा आज मैं आपके अंदर से इस आर्ट को निकालूंगा बाहर, मैं कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, आपको सब कुछ ऑलरेडी आता होगा। तभी देखा बेटा फर्स्ट डे ही आप आंसर दे पा रहे हो। दिस इज द, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है ना। वही चीज हमारा एक्सपीरियंस है, आपके अंदर से अकाउंट्स को निकालना। मैं आपको सिखा कम रहा हूं, आप मुझे ज्यादा आंसर दे रहे हो, है ना। तो ये चीज है जो, क्योंकि हमें ऑलरेडी आती है, अदरवाइज नया सब्जेक्ट आपको कैसे आता होगा? इकोनॉमिक्स आपको नहीं आती होगी, उस दिन मुझे ही बोलना पड़ेगा जो बोलना होगा। बट अकाउंट्स हम सबको आती है। आपके घर में हर एक पर्सन को आती है जो मनी में डील करता है। कौन करते हैं? बड़े लोग करते हैं, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ये सब लोग पैसे में डील करते हैं, डेली पैसा खर्च करते हैं, पैसा कमाते भी हैं। तो इन सबको अकाउंट्स आती है। बट अगर उसी अकाउंट्स को हम सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करें, उसका नेम है बुक कीपिंग। तो इट मीन बुक कीपिंग नहीं आती होगी किसी को घर में, वो आपको सीखनी है बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट। और ये सब कुछ कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है बेटा? Books of accounting, the books of original entry. हाँ, बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बिजनेस की बुक्स के भी नेम्स होते हैं बेटा। बिजनेस की बुक्स का जो फर्स्ट नेम है वो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं उसको? Books of original entry. यस, वेरी गुड। और फिर आगे सेकंड बुक है, थर्ड बुक है, फोर्थ बुक है। इसे मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड के ऊपर। ये बेटा हमारा व्हाइट बोर्ड है, क्योंकि क्लासरूम में तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड भी होता है, बट नॉर्मली भी जब आप क्लासरूम में आएंगे, वी हैव स्मार्ट क्लासरूम कॉन्सेप्ट। आपको एक यूनिक क्लासरूम मिलेगा। ट्राई सिटी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट क्लासरूम्स आता है हमारे इंस्टीट्यूट का क्लासरूम, जहाँ पे एक साइड पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, राइट हैंड साइड पर व्हाइट बोर्ड है और उसके ऊपर स्क्रीन है। तो मैं जो भी मैं वहां भी ऐसे टीच करता हूँ बेटा। आई राइट ऑन दिस माई सिस्टम, जिसमें अभी लिख रहा हूँ, मैं इस पर लिखता हूँ, और आपको ये चीज जो अभी आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप पे शो हो रही है, वो चीज आपको बहुत बड़ी करके प्रोजेक्टर पे शो होती है। और साथ में हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी साथ में रहते हैं। तो जब मैं जिस दिन आपको इंस्टीट्यूट से टीच करूंगा, तो उस दिन कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन भी आए होंगे और कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे एक टाइम पे। बहुत मजा आता है। आई डोंट यूज व्हाइट बोर्ड, मेरा व्हाइट बोर्ड यही है जो आपके सामने है। आई विल राइट एवरीथिंग हियर, और यहाँ पे सब रिकॉर्ड होता है जो भी लिखते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्या चीज बेटा? बिजनेस बुक्स के नेम्स लिखने जा रहा हूँ। बुक्स ऑफ बिजनेस कौन कौन सी हैं? अब देखो कुछ भी हम याद तो नहीं कर रहे, कुछ थ्योरी चल रही, ज्यादा कोई बोरिंग थ्योरी चल रही। फर्स्ट डे हमें यही सब समझना है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारी बुक्स ऑफ बिजनेस क्या क्या है। मैं पहली बुक का नेम लिख रहा हूँ बेटा। अभी भी मैंने बोला था, किसी को याद है फर्स्ट बुक का नेम क्या है? यस Books बेटा, of original entry. यस, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स उसका एक सिंपल नेम बोल दूं, ये तो उसका एक बिल्कुल साइंटिफिक नेम हो गया,
बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री उसका नेम है। जैसे फीवर नहीं होता बेटा, हमारा लेमन वर्ड क्या है, फीवर हो गया मुझे, पर फीवर का साइंटिफिक नेम आप किसी डॉक्टर से पूछो, वो कुछ और ही टर्म बताएगा, हमें समझ भी नहीं आएगी कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे एक लेमन वर्ड भी होता है। तो हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का एक लेमन वर्ड भी है, दैट इज कॉल्ड क्या लिखा बेटा मैंने? जर्नल। हाँ, दैट इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल क्या है? ये हमारी फर्स्ट बुक है बेटा जिसको आज मैं स्टार्ट कर दूंगा आपके साथ। इट इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बेटा 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूं। यस बेटा, आ रही है साउंड आपको अभी? यस सर। तो बेटा हमारी इस बुक का नाम है जर्नल। तो बेटा आपकी जो बुक कीपिंग स्टार्ट होती है ना, वो हमारी बिल्कुल फर्स्ट बुक से स्टार्ट होती है, तभी तो उसका नाम क्या है, ओरिजिनल एंट्री। और मैं अगर आपको और लेमन लैंग्वेज में बताऊं, घर की एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रफ बुक। रफ नोटबुक होती है ना आपके पास, क्या होती है रफ नोटबुक का मीनिंग? हम सबने रफ नोटबुक यूज की ना आज तक। क्या होती है रफ नोटबुक? रफ वर्क। रफ वर्क क्या होता है कि मैं आपको टीच कर रहा हूं और कुछ भी आपको लगे कि भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिख लेते हैं। तो हम सबके पास एक हैंड में रफ नोटबुक होती है जिसे हम नोट करते रहते हैं हर चीज, बाद में उसको फेयर कॉपी पे ले जाते हैं। से आपकी फेयर कॉपी होगी अकाउंट्स की नोटबुक, पर उस पे क्या लेके जाओगे, जो आप रफ कॉपी में नोट करोगे। तो ऐसे ही बेटा हमारी बिजनेस की बुक्स भी 2 तरह की हैं, एक रफ बुक, एक फेयर बुक। रफ बुक का नेम है जर्नल, इसका एक और नेम भी है बट वो बाद में हम बात कर लेंगे। इसे सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, बट अभी छोड़ देते हैं उसको ना, वो ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो इतना भी अगर हम समझ गए फर्स्ट क्लास में बेटा, दैट्स वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, कि हम ये समझ गए कि रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, कहाँ होती है, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बेटा लेक्चर के लास्ट 5 मिनट्स में हम ये सब कुछ रिवाइज भी करेंगे, और आप देखना आप सब लोग बोल रहे होगे, ऐसा कोई एक स्टूडेंट बोल रहा होगा, सब लोग बोल रहे होगे ये सब बातें, सबको याद हो जाएगा। दिस लाइक ए मैजिक, है ना। आप बस एंजॉय करो इसको। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां हम सबसे पहले, ओरिजिनल का मीनिंग क्या होता है बेटा, सबसे पहले जहां हम कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं, इसको प्राइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम। प्राइम। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, सबसे पहली एंट्री मैं जहां रिकॉर्ड करता हूं उस बुक का नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या ओरिजिनल एंट्री बुक, या प्राइम एंट्री बुक, जिसका नेम है इन शॉर्ट जर्नल। अब जर्नल का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। जर्नल वर्ड बेटा एक ग्रीक वर्ड से बना है, एक लेटिन वर्ड ग्रीक वर्ड होता है JOUR। आई डोंट नो उसको ग्रीक लैंग्वेज में कैसे बोलते होंगे, बट हम एज पर इंग्लिश डिक्शनरी इसे JOUR जोर बोल सकते हैं। दैट मीन्स डेली रिकॉर्ड्स। डेली की न्यूज आपके पास कौन पहुंचाता है बेटा? न्यूज़पेपर में चैनल। बेटा न्यूज़पेपर में कौन लोग होते हैं जो आपको न्यूज लिख के देते हैं? रिपोर्टर। उनको क्या बोलते हैं, और क्या बोलती हैं? जर्नलिस्ट। वेरी गुड, जर्नलिस्ट। पब्लिशर। बेटा कौन? उनको बोलते हैं Journalists. जर्नलिस्ट। यस, वो वर्ड भी जर्नल से बना है बेटा। तो जर्नल का मीनिंग न्यूज़पेपर भी होता है। इफ यू से जर्नल इज कॉल्ड न्यूज, न्यूज़पेपर का एक नेम जर्नल भी है, और न्यूज़पेपर में जो न्यूज लिखता है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टर या जर्नलिस्ट, क्योंकि वो डेली की न्यूज आपके पास लेके आता है। कल का जो न्यूज़पेपर आएगा वो आज की रिपोर्ट्स के ऊपर होगा, आज जो भी हमारे इंडिया में हुआ वो सब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कल मॉर्निंग में। दैट इज कॉल्ड जर्नलिस्ट, दैट मीन्स फ्रॉम JOUR, जिसका लेटिन में मीनिंग है डेली रिकॉर्ड्स। क्या मीनिंग है? डेली रिकॉर्ड्स। डेली रिकॉर्ड्स। तो जर्नल क्या है? जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेली एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। कैसे बेटा? डेट वाइज। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ
कि हम अपनी बिजनेस की बुक्स में क्या बनाएंगे, जर्नल। जर्नल का मीनिंग है डेली रिकॉर्ड्स, डेट वाइज रिकॉर्ड करना। किसको रिकॉर्ड करना, बिजनेस में जो भी होता है। जैसे आपने बोला सर हम बिजनेस में रेंट पे करते हैं, एक्सपेंडिचर्स पे करते हैं, हम फर्नीचर परचेज करते हैं, हम बिजनेस में जो प्रोडक्ट बेचते हैं पहले उसको परचेज करते हैं फिर उसको बेचते हैं, ये सब कुछ मनी में इन्वॉल्व होता है। मीन इन सब में मनी इन्वॉल्व है, लेकिन इन सबको लिखना तो पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्या ये आपको सब याद रहेगा? बेटा मैं 1 ईयर में कितने स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ, आई हैव सो मेनी बैचेस, +1 +2 बीकॉम, और फुल ईयर में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, और हमारे एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज्यादा हैं इंस्टीट्यूट के, कोचिंग सेंटर के। तो क्या ये सब कुछ मुझे याद रहेगा? क्या मैं अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ इस बात को लेके? नहीं। No, sir. दैट्स वाई बेटा मुझे सब कुछ लिखना पड़ेगा। Whenever I pay April month rent, मैं नोट करता हूँ। अप्रैल मंथ की सैलरी जब मैं पे करता हूँ मैं नोट करता हूँ। मुझे जब जब भी स्टूडेंट्स की फीस आती है वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। पर कहाँ रिकॉर्ड करता हूँ? हाँ जी, कहाँ? वेयर? इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, Entry. जर्नल। उसके बाद बेटा सेकंड बुक बनती है जिसे बोलते हैं बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री या फाइनल एंट्री बुक, जहां पर एंट्री आकर फाइनल रिकॉर्ड हो जाती है, फाइनल एंट्री बुक। इसे प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। प्रिंसिपल मींस जो सबसे मेन होता है, दैट इज कॉल्ड लेजर। बट अभी हम फर्स्ट डे इतना कुछ नहीं सीखेंगे कि लेजर कैसे बनती है, मैं सिर्फ ओरली बताता हूँ। जो भी चीज हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम, उसके लेजर में अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंट्स वर्ड सुने ना अभी, अभी यूज होगा अकाउंट्स वर्ड। लेजर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंट पे किया तो पता है मैं क्या करूंगा, आई विल मेक ए रेंट अकाउंट। तो फिर जब भी मैं रेंट पे करूंगा, से मैंने 7 अप्रैल को रेंट पे किया, नेक्स्ट रेंट मैं कब पे करूंगा अपने कोचिंग सेंटर का? 7th May. 7 में। 7th. ऐसे ही मुझे 7 अप्रैल को फीस आई थी एक स्टूडेंट की, तो नेक्स्ट फीस कब आएगी? 7 मई को फीस आएगी। 7th May. क्योंकि इंडिया में 1 मंथ को यूज करते हैं, मंथली गैप होता है हमेशा हर चीज का। तो ये सब कुछ मैं पहले तो यहाँ पे रिकॉर्ड करता गया जर्नल में डेट वाइज, और फिर मैंने इस जर्नल को बनाने के बाद 1 डे क्या किया, जैसे 7 डेज का जर्नल बनाया, 1 डे ऑन संडे मान लो से मैंने इन सबके अकाउंट्स बना दिए। रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, फीस अकाउंट। कुछ चीजें मेरे पास आ रही हैं, कुछ चीजें मैं पे कर रहा हूं। फर्नीचर अकाउंट, हर एक चीज का बेटा अकाउंट बनता है। अब मैं जब भी रेंट पे करूंगा, सबसे पहले वो 7 अप्रैल को जर्नल में रिकॉर्ड होगा, उसके बाद वो एंट्री कहां आ जाएगी, किस में आ जाएगी? Rent account. रेंट अकाउंट में। इससे क्या फायदा होगा, 1 ईयर का टोटल मैंने कितना रेंट पे किया, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास रेंट अकाउंट के थ्रू आ जाएगी। दैट विल बी ए फाइनल आंसर कि मेरा 1 ईयर का खाली रेंट पे कितना खर्चा है, मेरा 1 ईयर का सैलरी पे कितना एक्सपेंडिचर है, और मेरे को 1 ईयर में टोटल कितनी फीस आती है। मेरे को तो बेटा आप सबसे फीस आएगी, चाहे आप +1 में हो, +2 में हो, बीकॉम में हो, है ना। आई टीच 300 to 400 स्टूडेंट्स इन ए ईयर। मुझे 400-500 स्टूडेंट से फीस आनी है एक साल में। बट मैं उसको रिकॉर्ड कहाँ करूंगा, जहां से मुझे क्लियर हो जाए कि मुझे कहाँ से फीस आनी है। मुझे अकाउंट्स भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, बिजनेस स्टडीज भी आएगी, इतना कुछ मैं कैसे याद रखूंगा। और कोई स्टूडेंट 7th को पे कर रहा है, कोई 9th को पे कर रहा है, कोई 1st को पे कर रहा है, कोई फुल फीस 1 टाइम में पे कर रहा है, कोई इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है। ये सब कुछ डेट वाइज पहले जर्नल में रिकॉर्ड होगा, उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट में आता रहेगा। फिर एट द एंड ऑफ 1 ईयर, देखो हम थ्योरी को ज्यादा नहीं कर रहे आज, हम प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि उस थ्योरी का मीनिंग क्या है। आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर मैं इसका टोटल करूंगा और इसका टोटल करूंगा। अज्यूम करते हैं कि मेरे 2 ही एक्सपेंडिचर है बेटा, रेंट एंड सैलरी। वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं हर किसी के, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, है ना, ये इंटरनेट, फोन बिल, एवरीथिंग, और भी खर्चे होते होंगे सबके। मैं लेकिन एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे बिजनेस के 2 एक्सपेंडिचर हैं, एक रेंट और एक सैलरी। मैंने फुल 1 ईयर में कितना रेंट पे किया, ये मुझे जर्नल से पता चलेगा या लेजर से? देखते आंसर आता नहीं आता सामने। Leisure. किससे बेटा? Leisure. लेजर से। वेरी गुड।
तो दैट्स वाई लेजर को क्या बोल देते हैं, बुक्स ऑफ फाइनल Final एंट्री। entry। तो बेटा हमारी अकाउंट्स की 2 ही बुक्स हैं, 10-15 नहीं है, हमारी 2 ही बुक्स हैं, एक रफ बुक एक फेयर बुक। तो रफ बुक क्या हुई, जर्नल, और फेयर बुक क्या हुई, Ledger। सिंपल। तो जब बेटा ये कॉन्सेप्ट स्कूल में चलेगा या आपके फ्रेंड्स कहीं पे करेंगे, तो उनके पास ये वाली एग्जाम्पल अगर नहीं है तो वो जस्ट एक बुकिश लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि जर्नल क्या है। वो लैंग्वेज तो भी हमारे सामने आई भी नहीं है, वो तो इसकी डेफिनेशन होगी, व्हाट इज जर्नल व्हाट इज लेजर, वो तो हम सबने याद करने थ्योरी में, बट वो चीज हमें याद नहीं रहेंगी ना ज्यादा देर तक। हमारे पास क्या रह जाएगी, अंडरस्टैंडिंग। अब आपको ये पूरी लाइफ के लिए याद हो जाएगा बेटा कि जर्नल एक रफ बुक है जहां एंट्री सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है व्हेनेवर इट अकर्स, मतलब डेट वाइज। अगर 7 मई को मैंने रेंट पे किया तो 7 मई की डेट पर ही ये एंट्री जर्नल में जाएगी। और अगर 8 को भी रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी 7 का डेट डालकर ही रिकॉर्ड करूंगा मैं कि मैंने ये रेंट कल पे किया था। और बाद में कभी भी, ये नहीं 7 को ही, कभी भी आप टाइम निकाल के लेजर बना लो, वो एक फाइनल एंट्री बुक है। आई थिंक क्लियर है बेटा। हमारी बिजनेस की 2 बुक्स होती हैं, एक बुक कीपिंग और एक दूसरी Ledger। फाइनल एंट्री बुक लेजर। यहां पे मैं 2 मिनट के लिए रुक सकता हूं। अभी तक के लेक्चर में बेटा हमने ऑलमोस्ट ये 50 मिनट्स का लेक्चर कवर कर लिया है। इस 50 मिनट्स में मैंने क्या समझा है, देखिए 2 मिनट के लिए क्या समझा है बेटा। कैमरा को रोक कर रहा हूं मैं। क्या समझा बेटा बताइए। फर्स्ट मैंने क्या समझा कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नेम क्या है, Accountancy। उसमें हम क्या करते हैं, Bookkeeping and accounting। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या आता है, Bookkeeping। बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है, बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है, It is a system of recording business transactions of financial nature। लेकिन बेटा इसे ट्राई करो अंडरस्टैंडिंग वाले वे में बोलने की। जैसे आई थिंक कौन बात कर रहा था, गुडप्रिया। Yes sir। जैसे बेटा गुडप्रिया, व्हाट्स योर गुड नेम, आप कौन सी क्लास में हो, आप कहाँ रहते हो। जब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो आप कहीं से रेफर नहीं करोगे इनको, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से आंसर दोगे। ऐसे मुझे बुकिश लैंग्वेज में आंसर नहीं चाहिए, मुझे आपके इंटरनल ब्रेन में जहां पे वो आंसर सेव हुआ है, क्या समझा आपने। याद करने के लिए पूरा साल पड़ा है बेटा, करते रहना याद, कोई बात नहीं, नोट्स में से नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन आंसर किस फॉर्म में चाहिए, ट्राई टू गिव इन दैट फॉर्म। वेरी गुड, आपने फर्स्ट डे इतना बड़ी आंसर दिया, बट इसको और आप अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। तो आप क्या बोलोगे सर, बुक कीपिंग क्या है, इसको अपने एनालिसिस में बताओ। कौन बताएगा, ये आस्था। रफ वे में ट्रांजैक्शन को या डेली डेट वाइज जो भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्ड करते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन, किस नेचर की, मनी के टर्म्स में या फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप क्या होता है, अकाउंटिंग, जिसका मीनिंग मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं किया, हो जाएगा शेयर, कोई बात नहीं, उसको भी डेफिनेशन को पढ़ लेंगे, बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग का क्या है। लेकिन ये समझिए कि जहां बुक कीपिंग एंड होगी वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, और इसका एक ही पर्पस होगा, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। दैट्स बेटा, बुक कीपिंग अकाउंटिंग पे डिपेंड है कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे डिपेंड है, टेल मी। अकाउंटिंग बुककीपिंग। यस, जैसे आपके एग्जाम्स रिजल्ट पे डिपेंड नहीं है, बट आपका रिजल्ट आपके एग्जाम्स पे डिपेंड है कि आपके एग्जाम्स कैसे हुए हैं, उसी का तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसलिए जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो अपनी आंसर शीट में, तब रिजल्ट इज नथिंग देयर। रिजल्ट को देख रहे हो, आंसर लिख रहे हो आप तो बस आंसर लिख रहे हो। उसके बाद उस आंसर से क्या रिजल्ट आता है वो एक एंडिंग आंसर है। तो अकाउंटिंग जब मैं आपको सिखाऊंगा वो बहुत आगे की बात है बेटा, 5-6 मंथ्स के बाद की बात है, 5 मंथ्स के बाद की, जहां आपको ये सिखाया जाएगा। उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा बस, आपकी बुक, आपके सिलेबस का आप कह लो 10 में से 9 चैप्टर्स या 8 चैप्टर्स किस पे हैं, बुक कीपिंग पे, 1 या 2 चैप्टर्स आने हैं अकाउंटिंग के ऊपर, क्योंकि आगे +2 ऑनवर्ड्स अकाउंटिंग चलेगी। तो +1 का पूरा सिलेबस बुक कीपिंग पे डाल दिया। ये सब बातें में समझना चाहिए बेटा फर्स्ट डे।
फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया। इन दोनों में जो रूल्स थ्योरी बेस है, जो अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स जो भी है, वो सब एक सब्जेक्ट में से लिया गया है जिसका नाम है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज ए सब्जेक्ट जिसकी दो टर्म्स हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फिर उसके बाद हम नंबर 2 पे आते हैं कि बुक कीपिंग क्या है, तो उसका फिर डेफिनेशन आता है। अब सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ बेटा, मान लो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ लेकिन मैं समझ भी तो रहा हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्यों इतनी परफेक्ट हो जाती है, क्योंकि 20 ईयर्स टीच करने के बाद आप तो सिर्फ एक बार सुन रहे हो, मैंने 20 ईयर्स में कितनी बार ये लेक्चर सुनाया होगा। तो मैं भी तो साथ साथ में समझ रहा हूँ ना, बीइंग ए स्टूडेंट। हर टीचर एक स्टूडेंट तो होता ही होता है बेटा, और वो एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट होता है, तभी तो टीचर बन पाते हैं। तो मैंने क्या समझा, अगर आज की क्लास में अगर मैं अपने एनालिसिस बताऊं, ये बेटा आपको मैं एक सेमिनार दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि डेली के नोट्स कैसे बनते हैं। इट विल चेंज योर लाइफ बेटा। आपने 10th क्लास में ऐसे नोट्स नहीं बनाए होंगे जैसे मैं तुम्हें +1 में सिखाऊंगा कि नोट्स कैसे बनते हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग से संडे को कभी भी ना, अभी तो बैच फ्रेम हो जाए, आफ्टर दैट आई विल टेक ए सेमिनार। वैसे ही सेमिनार हम इंस्टीट्यूट में लेते हैं, बट अभी कोविड के कारण हम आपका ऑनलाइन सेमिनार लेंगे, वहां पे समझाऊंगा बेटा नोट्स कैसे बनते हैं। उसके एक लिटिल बिट एग्जांपल अभी दे रहा हूँ। फर्स्ट डे आज हमारा, आपने जो भी समझा अपनी आईज क्लोज कर लो और एक आंसर ढूंढो उसका। जैसे बेटा हम क्रिकेट मैच देखते हैं, हम एक मूवी देखते हैं, मूवी को देखने के बाद 3 आवर्स स्पेंड करने के बाद या पूरा दिन क्रिकेट मैच पे लगाने के बाद हम रात को रिजल्ट्स निकालते हैं कि अगर ये कैच आउट ना हुआ होता तो ये हो जाता, अगर ये हुआ होता तो ये हो जाता। मूवी के अंदर भी हम सोचते हैं, हर पर्सन थिएटर से जब बाहर निकलता है मूवी देखकर, मैं उसको एनालिसिस करता हूँ, वो लोग मूवी के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि अगर ये चीज होती ना तो ज्यादा बढ़िया था यार, ये नहीं होना चाहिए था। जबकि सबको पता है ये सब ड्रामा है, सब फेक है, मूवीज फेक होती हैं, रियल थोड़ी होती है मूवीज। लेकिन हम तब भी सेंटिमेंटली अटैच हो जाते हैं मूवीज के साथ। हमें दुख होता है किसी की डेथ पे, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम उस पर भी बात कर रहे होते हैं। यही वो मोमेंट है बेटा जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। बेटा मेरा एक बहुत ही स्पेशल रिसर्च है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, फोकस के ऊपर, वो सब मैं आपके अंदर डेवलप करूंगा। अब जबकि मेरा एज ए अकाउंट टीचर ये कोई रोल नहीं है, बट क्योंकि ये एक आपको सपोज मेरे अंदर ये बेटा मल्टीपल क्वालिटीज हैं, तो आपको एक पैकेज में सब मिलेगा। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो सब चीजें जो मैंने रिसर्च में 20 ईयर्स में समझी हैं, वो मैं आपके अंदर ट्रांसफर करूँ 1 ईयर में। तो यहाँ मेरे साथ 1 ईयर स्पेंड करने का मीनिंग सिर्फ अकाउंट्स नहीं है, बहुत कुछ है बेटा। ये सब प्रूव हो जाएगा विद इन 1 मंथ। तो आज के लिए मैं इतना बोलूंगा, मैंने आपको जो भी सिखाया बहुत लिटिल बिट सिखाऊंगा आज मैं। आपने सिर्फ 5 मिनट्स के लिए आईज क्लोज करनी है और ये समझना है कि उसका मीनिंग क्या है। तो सपोज अगर मैं वो स्टूडेंट हूं तो मैं पता क्या बोलूंगा कि सर बुक कीपिंग का मीनिंग है, सिंपल वर्ड्स में जैसे हम बात करते हैं मम्मा के साथ, घर में किसी के साथ, वैसे आपने मेरे साथ बात करनी है। हमारे बीच में कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है कि आपको बुक लैंग्वेज में बताना है, आपको इंग्लिश में ही बोल के बताना है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। अकाउंट्स हैज नो लैंग्वेज। मैं भी तो देखो सिंपल वे में बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी कि हिंदी या इंग्लिश की बात है। यहाँ पे आपने ये बताना है कि सर बुक कीपिंग का मीनिंग आपने ये बताया है कि जहां हम अपनी बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होती हैं उन्हें हम डेट वाइज डेली बेसिस पे बिजनेस की फर्स्ट बुक में, पहली बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और हर एक ट्रांजैक्शन का लिंक मनी के अंदर होता है, मीन्स हर एक ट्रांजैक्शन में एक मनी इन्वॉल्व होती है, एक पैसा इन्वॉल्व होता है, और जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा बिजनेसमैन इज वेरी ऑनेस्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी इज वेरी गुड, क्या हम इनको रिकॉर्ड कर पाएंगे? प्रोडक्ट क्वालिटी का कोई अमाउंट है कुछ, कितने का है वो अमाउंट वाइज? नो सर। आपकी इंटेलिजेंसी कितने रुपए की बेटा, अमाउंट बताओ। 1000, 1 लाख, 2 लाख, 500, कितने की आपकी इंटेलिजेंसी? यू विल से सर हाउ कैन आई से, मैं अपनी इंटेलिजेंसी को, अपनी स्मार्टनेस को मैं मनी टर्म्स में कैसे बताऊं? दैट्स वाई बेटा हम ये कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंट्स में कि बिजनेसमैन कितना स्मार्ट है, उसकी पॉलिसीज कितनी बढ़िया है, उसका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कंज्यूमर कितना सेटिस्फाइड है। जब मैं आपको टीच करूंगा बेटा आप भी तो देखोगे ना कि हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मेरा स्टूडेंट मेरे से कितना सेटिस्फाई है, ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी एक कोचिंग सेंटर की प्रोग्रेस के लिए, कितना जरूरी है बेटा। आज आप 8 स्टूडेंट हो लेकिन आपके रेफरेंस से कितने और नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, ये किस पे डिपेंड करता है कि आप कितने सेटिस्फाइड हो। पर ये कभी भी हमारी अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा कि आस्था कितनी सेटिस्फाइड है, अनन्या को कितना समझ आया, है ना।
दिया को कितना समझ आ रहा है, कितना उसके मार्क्स आ रहे हैं। नो, कभी रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या रिकॉर्ड होगा? आपने कितनी फीस पे की और मेरे इंस्टीट्यूट के रेंट, सैलरी, क्या एक्सपेंडिचर है, और इन दोनों को माइनस करके मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये देखो बेटा, जबकि बिजनेस को चलाने वाली चीजें क्या थी? टीचर का टीचिंग, उसका एक्सपीरियंस, वे ऑफ टीचिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके रिजल्ट्स, क्लास में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ये सब बातें किसी कोचिंग सेंटर को नंबर 1 कोचिंग सेंटर बना सकती हैं। लेकिन ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जहां 1000 स्टूडेंट्स भी पढ़ते होंगे वहां भी बेटा कहीं रिकॉर्ड नहीं, कहीं भी। सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है? मनी टर्म्स में। तो हमने ये समझाया आज कि बुक कीपिंग में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो मनी टर्म्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमारी बुक कीपिंग का एक ड्रॉबैक भी है, लिमिटेशंस भी है। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी अगर तुम पढ़ोगे ना, ये नोट्स में शेयर कर दूंगा, ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है थ्योरी में, अगर जाओगे तो आगे बुक कीपिंग की लिमिटेशंस भी आती हैं, जहां ये लिखा हुआ है कि हम इसमें सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो मनी टर्म्स में है, जबकि वो रॉन्ग है। बिजनेस की सक्सेस के लिए तो बहुत कुछ और होता है जो मनी टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऐसे बेटा इतना कुछ हमने समझा है। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक डेफिनेशन के ऊपर भी अगर हम इतना टाइम डिवोट करें तो कैसे समझ नहीं आएगी वो डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन में पूरे साल का सिलेबस छुपा हुआ है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। समझ आ गया। फाइनेंशियल नेचर की है, वो मनी में है। कहाँ रिकॉर्ड करना है? इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और वहां से वो ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी? हाँ, ये भी हमने आज समझा कि पहले वो ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होती है डेट वाइज, फिर उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद वीकली, फोर्टनाइटली वो लेजर में जाती है। और लेजर में सबके क्या बनते हैं? शिवम बेटा क्या पूछ रहे हो कुछ? नथिंग सर। ओके। उसके बाद ये अकाउंट्स की बुक्स में जाती है, सॉरी लेजर में जाती है, जहां डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, जिससे हमें एक रिजल्ट मिलता है कि हमारा 1 ईयर का रेंट पे खाली कितना एक्सपेंडिचर है, सैलरी पे कितना है, इंटरनेट का बिल कितना आ रहा है 1 साल का, एडवर्टीजमेंट पे कितना एक्सपेंडिचर है, कितनी फीस आ रही है, उससे एक रिजल्ट आता है। वो हम अकाउंटिंग में शो करते हैं। तो अकाउंटिंग में से रिजल्ट शो होते हैं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये सब हमने समझा है। अब आगे को वर्ड और अटैच कर रहा हूं बेटा मैं। बुक कीपिंग को हम एक सिग्निफिकेंट और सिस्टेमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। वो सिस्टेमेटिक मैनर क्या है? इसे हम फुल 1 ईयर का सिलेबस बोलते हैं। अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद क्या? फिर लेजर के बाद न्यू बुक तो नहीं बनेगी, पर लेजर के अंदर से जितने भी बैलेंसेस आएंगे, जितने भी बैलेंसेस आएंगे बेटा, उनकी हेल्प से हम एक और स्टेटमेंट, मैं बुक की बात नहीं कर रहा, बुक्स 2 ही होती हैं, एक रफ बुक, ओरिजिनल एंट्री बुक, जर्नल, और दूसरी फेयर बुक, दैट इज कॉल्ड लेजर। इन सब बैलेंसेस को हम कहां लिखते हैं? एक और स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा जिसका नाम है ट्रायल बैलेंसेस। अब ये सब कुछ आपके लिए नया है ना, तो इसलिए इंटरेस्टिंग भी है बेटा, टफ नहीं है, नई चीज सीखेंगे। 10th क्लास के हर एक सब्जेक्ट से अगर आप बोर हो गए हो तो यहाँ हर चीज न्यू है बेटा आपके लिए। तो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि 10th में आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने आपके मार्क्स हैं। जो होना है इस साल में डिसाइड होना है बेटा कि आगे कॉमर्स में आप कितने इंटेलिजेंट रहोगे। आपका पास्ट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज न्यू है। आपको ये सीखना है ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये भी एक चैप्टर है। उसके बाद फिर यहां तक बेटा बुक कीपिंग है। इन 3 चैप्टर्स में बुक कीपिंग है और बहुत कुछ है इसके अंदर, बट अभी मोटा मोटा 3 चैप्टर्स कौन कौन से बेटा? जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। यस, जहां वो सारे बैलेंस लिखे जाएंगे। उसके बाद बेटा हम अकाउंटिंग में एंटर करते हैं। इसके साथ मैं अपना थ्योरी पार्ट ओवर कर रहा हूं अभी आज के लिए। फिर हम अकाउंटिंग में एंटर करते हैं, और जहां ग्रैंड फिनाले होता है बेटा, होता है ना हर एक कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले, वर्ल्ड कप का, या कोई आप प्रोग्राम देख रहे हो, सिंगिंग प्रोग्राम चल रहा है आजकल, है ना, डांसिंग प्रोग्राम चल रहा है, इन सबके ग्रैंड फिनाले होने हैं। और ग्रैंड फिनाले में सामने आएगा हु इज विनर। तो बेटा हमारे अकाउंट्स का भी एक ग्रैंड फिनाले है जिसको बोलते हैं फाइनल मैच, फाइनल अकाउंट्स। ये बेटा हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, फाइनल अकाउंट्स। बुक में चाहे कहीं भी दिया हो, डजंट मैटर, बुक का सीक्वेंस अलग होता है, पर अंडरस्टैंडिंग में बोल रहा हूं, ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा, फाइनल अकाउंट्स।
जहां हम बिजनेस का क्या कैलकुलेट करेंगे कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या Loss. लॉस हुआ, और प्रॉफिट या लॉस के बाद हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है हमारे बिजनेस की, ये सब कुछ बेटा इस चैप्टर में इन्वॉल्व होगा। और उसके लिए हम दो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मैं वैसे एडवांस में बता रहा हूं, मे बी आपको समझ ना आए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फर्स्ट डे में ज्यादा से ज्यादा वर्ड चाहता हूं आपसे डिस्कस करना, सो दैट अवेयरनेस बढ़ जाए हमारी, हमें लगे कि हम पता नहीं कितने सालों से पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। देखो मैंने यहाँ बैठे बैठे आपको पूरे साल का सिलेबस समझा दिया। ये बेटा हमारा सिलेबस है कि पहले हम हर चीज को सिस्टेमेटिक का मीनिंग क्या है, देखो डेफिनेशन को इतना लाइव समझना है हमें, उसके अंदर इतनी जान डालनी है कि हमें उसके हर एक वर्ड का मीनिंग पता हो, तब तो मजा आता है पढ़ने का। फिर मतलब ही नहीं कि आप उसको क्रैम कर जाओ। आप किसी को भी बेटा, अब आज ना देखो फर्स्ट डे है, जहां स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं आता ट्यूशन पे, पेरेंट्स बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं अभी तो फर्स्ट डे है, जस्ट आप अभी 1 मंथ पढ़ो फिर समझ आएगा अकाउंट्स क्या चीज है। ऐसे थोड़ी एक दिन में आता है, बट मैं ये कहता हूँ बेटा एक दिन नहीं आता समझ हमें, 1 डे ही समझ आ जाएगा अकाउंट्स क्या है। अगर आज आप अपने पेरेंट्स को बता पाए या किसी को समझा पाए कि आज मैंने क्या पढ़ा है, तो बेटा मजा आ जाएगा। जबकि फर्स्ट डे आपका, यू आर वेरी न्यू इन दिस सब्जेक्ट। प्लस 2 उनको तो आता ही होता है, ठीक है, उनको तो नई चीजें सीखनी है, आगे की अकाउंटिंग सीखनी है। बट आज आप अगर ये समझ गए यहां से कि हम पहले बुक कीपिंग करते हैं, जहां पर बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको हम वहां से नेक्स्ट बुक में, फाइनल एंट्री बुक में ले जाते हैं लेजर में, जहां पूरे साल का टोटल होता है, रेंट अकाउंट का टोटल, सैलरी अकाउंट का टोटल, और वो एक बैलेंस आ जाता है 1 ईयर का, उससे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे बुक कीपिंग ओवर हो जाती है और फिर हम एंटर करते हैं नेक्स्ट ब्रांच में, नेक्स्ट सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग, जहां हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, और साथ में एक और बनाते हैं बैलेंस शीट। ये सब वर्ड्स न्यू हैं, डोंट वरी, आगे जैसे जैसे हम जाएंगे आप यूज टू हो जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग अकाउंट्स आपके लिए। वहां हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं कि हमारा बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है। जिस बेटा मैं आपको बोल के जाता हूँ, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है ना, पैसा है, गोल्ड है, बैंक बैलेंस है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है। दूसरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो रोड पे आ गया, मेरे ऊपर तो इतना लोन चल रहा है ना, बैंक का पैसा मैंने वापस करना है, लोग मुझे ढूंढ रहे हैं जिनका मैंने पैसा वापस करना है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, लाइबिलिटीज हैं। तो मैं ये क्या बता रहा हूँ, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। तो एक मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे आप इन लोगों को लाइक करते हो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस होता है, हम बोलते हैं बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, कितना बड़ा घर होता है उनका, बिजनेस, गाड़ी, है ना। इन सब लोगों के साथ हर कोई चाहता है अटैच होना, क्योंकि उनका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ओब्वियसली बेटा अगर आपका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो आपके बैंक में बहुत पैसे हैं, आपके घर में बहुत पैसे हैं, आपके गोल्ड बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तभी तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोगों के ऊपर हर कोई ट्रस्ट करता है। मेरा एग्जाम्पल बेटा कैसा भी हो, मैं आपको बिल्कुल आसपास का एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा हर चीज, आम सराउंडिंग में से। तो आई थिंक बात समझ गए होगे, बिजनेस की भी एक फाइनेंशियल पोजीशन होती है कि बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेस के ऊपर कितनी लायबिलिटीज हैं, और वहां से समझ आता है। ये सब कुछ बेटा रिजल्ट है, किस चीज का रिजल्ट है, किस चीज का रिजल्ट है, फुल ईयर जो हमने रिकॉर्ड किया, किसके अंदर, बुक कीपिंग में। यस बेटा, वेरी गुड, मजा आ गया। बुक कीपिंग में जो रिकॉर्ड किया उस पर डिपेंड है भाई। अगर मैंने पूरा साल लोन लिया तो आंसर भी तो वही आएगा कि मेरे ऊपर लोन बहुत ज्यादा है। अगर पूरा साल मैंने प्रॉपर्टी परचेज की, मैंने एसेट्स परचेज की बिजनेस के लिए, है ना, मैंने फर्नीचर परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, तो ऑटोमेटिकली ईयर के एंड पे मेरे पास वो सब कुछ होगा। फुल ईयर मुझे आपकी फीस आती गई तो ऑब्वियसली मेरे पास बैंक बैलेंस होगा। अब पूरा साल अगर आपने मेरी फीस नहीं दी तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे। तो मेरे बिजनेस का ईयर के एंड पे क्या हालात होगी, क्या सीन होगा बेटा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पूरा साल मेरे पास क्या क्या आता है और मैं क्या क्या पे करता हूं। दैट इज कॉल्ड फुल ईयर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, फिर लेजर में आती हैं, वहां से यहां जाती हैं, और उसके बाद फाइनली यहां रिजल्ट आता है। आई थिंक बेटा इससे ज्यादा
वन डे में समझाने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर इतना भी समझ गए तो मेरा ये एनर्जी हार्डवर्क सक्सेसफुल है आपके लिए, जो भी टाइम डिवोट किया जा रहा है आपके साथ। उसके बाद हम नोट्स में एक बार आ जाते हैं, और ये सब कुछ हम 1 ईयर के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं बेटा? 1 year. 1 ईयर के लिए करते हैं, फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। और हमारे अकाउंटिंग ईयर 2 तरह के होते हैं। 1 इज कैलेंडर ईयर। क्या बोला मैंने बेटा? 1 इज Calendar year. कैलेंडर ईयर Calendar year. विच स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी एंड एंडिंग इन, December. जैसा बोलते हो न्यू ईयर जनवरी 1 को स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर 31 इज द लास्ट डे ऑफ एवरी ईयर। उसके बाद एक नया साल शुरू होता है, न्यू ईयर, न्यू लाइफ, और हम वहां पे सेलिब्रेट भी करते हैं न्यू ईयर। तो बेटा ये कैलेंडर ईयर है, बट हमारे इंडिया में कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं किया जाता। हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है फाइनेंशियल ईयर को, विच स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड एंडिंग ऑन May. मार्च। अच्छा, आप में से अगर कोई बिजनेस फैमिली से है, आई डोंट नो, अभी तो मैं उन लोगों को जानता नहीं हूँ, अगर आप में से कोई भी बिजनेस फैमिली में है, या वो लोग बेटा जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे आज की क्लास काफी स्टूडेंट के साथ शेयर भी करनी है। जैसे क्लास ओवर होगी ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, कुछ एक टाइम के बाद मोबाइल ऐप पे आ जाएगी। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ बेटा, क्या आप में से कोई बिजनेस फैमिली में है? तो बेटा आपके पापा 31 मार्च के आसपास बहुत बिजी होते हैं। सुना होगा आपने कि नहीं बेटा, अभी कुछ मत बुलाओ, अभी हम कहीं घूमने जाएंगे, 31 मार्च आ रही है, हमारे बिजनेस की क्लोजिंग है। ट्रैफिक पुलिस वाले भी बहुत बिजी होते हैं बेटा 31 मार्च तक चलान काटने में, क्योंकि ईयर का एंड हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस के भी अकाउंट्स बनते हैं, उनको भी देखना है कि फुल 1 ईयर में उनको चलान से कितनी इनकम हुई। हर एक डॉक्टर को, एडवोकेट को, टीचर को, बिजनेसमैन को, चाहे वो किसी प्रोफेशन में, मेरा आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट हुआ था कि आप चाहे किसी प्रोफेशन में हो या बिजनेस में हो, आपको 1 ईयर के लिए बुक कीपिंग करनी है। और ईयर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेटा मार्च के अंदर 10 नए स्टूडेंट्स ऐड हो जाएं और उनकी फीस आ जाए, तो हमारा ईयर का प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि वो उस ईयर का प्रॉफिट है। मार्च ओवर होते ही नई बातें स्टार्ट हो जाएंगी। तो हर पर्सन इंडिया में 31 मार्च को बिजी होता है। अगर वो जॉब कर रहा है तो वो कहाँ जॉब कर रहा है बेटा? किसी बैंक में, किसी बिजनेस में, तो उसका बिजनेस बिजी है तो वो भी बिजी है, ऑब्वियसली है ना बेटा। या तो आपका खुद का बिजनेस है, या आप किसी बिजनेस में एम्प्लॉय हो, जॉब करते हो, या आप किसी प्रोफेशन में हो। हर पर्सन बेटा इंडिया में 31 मार्च को बिजी होता है। एवरी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंक हो, कोई दूसरी कंपनी हो, एवरीवन इज बिजी है। जैसे हर कोई दिवाली पे बिजी होता है ना, वैसे होता है बेटा, क्योंकि ये हमारे फाइनेंशियल ईयर का एंड है। 31 मार्च तक जो आपके पास आ गया, जो आपसे चला गया, वो ये डिसाइड करेगा कि 31 मार्च के एंड पे आपके बिजनेस का 1 साल का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और उस प्रॉफिट या लॉस के बाद आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, क्या है, तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। जैसे बेटा 31 मार्च को आपका रिजल्ट आता है 10th क्लास का, पूरा साल आप पढ़ते हो, बिल्कुल बेटा सेम एग्जांपल है। इट इज जस्ट लाइक योर सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल, चाहे वो आपने मई में स्टार्ट किया हो, जून में करिए, वो आपकी मर्जी है। स्कूल कभी भी ज्वाइन करो, ट्यूशन कभी भी ज्वाइन करो, बट सेशन क्या कहलाता है? 2021-22 स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च। तो उस 1 ईयर में आपने क्या समझा, आपके एग्जाम्स कैसे हुए, उस बात पे रिजल्ट डिपेंड आएगा। तो आपका रिजल्ट हर एक डे पे डिपेंड होगा बेटा। आज रोज क्या सीखते हो आप? आई थिंक मैं अब एक रेस्ट पोजीशन में जाकर आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है। तो अब सब कोई बेटा बात करेगा। एवरीवन विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज बुक कीपिंग। जैसे बोलते हैं ना, हम टेबल्स बोलते हैं, है ना, 4 5 आर 5 6 आर, सब लोग उस टाइम टेबल्स बोल रहे थे क्लास में। देखा ना प्राइमरी क्लासेस में बच्चे कैसे टेबल याद करते हैं, उनकी साउंड स्कूल के बाहर तक आ रही होती है समटाइम्स। ऐसे बेटा आपको बोलना है। एवरीवन कैन अनम्यूट देयर लैपटॉप, मोबाइल, जो भी है। यस बेटा, व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज ए रिकॉर्ड बनाना, Recording business. में मनी इन्वॉल्व हो, और ये जिसमें transactions involving monetary, Yes. financial nature के transactions कहाँ रिकॉर्ड रिकॉर्ड? वेरी books गुड, of original entries, that Okay. is a journal, वेरी and गुड। after that जर्नल। ledger और किस फॉर्म में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इन ए सिस्टमेटिक way and significant manner. एंड सिग्निफिकेंट मैनर। वेरी गुड। क्योंकि वो ऐसा नहीं बेटा, आप बोलोगे सर पहले लेजर सिखा दो, एक मिनट, पहले लेजर सिखाओ फिर जर्नल, ऐसा नहीं होगा बेटा। पहले जर्नल सिखाएंगे फिर लेजर, सिस्टमेटिक मैनर होगा। बिजनेस में वैसे ही होता है।
क्या कुछ नहीं बेटा, यहाँ तक आ सकते हो। इन ए सिस्टमेटिक मैनर फॉर 1 ईयर, ये सब कुछ बेटा 1 ईयर के लिए करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा करेंगे, इस ईयर का जो भी होगा इस साल के लिए होगा। यस, तो बेटा आज लास्ट टाइम के लिए हम एक बार बुक कीपिंग की डेफिनेशन को देख रहे हैं। इट इज ए सिस्टम या आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन अ सिग्निफिकेंट एंड सिस्टमेटिक मैनर फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। कहने को ये एक डेफिनेशन है बेटा, पर ये हमारा 90 मिनट्स का लेक्चर बन जाता है और आपका ये 1 ईयर का सिलेबस बन जाता है। अभी बेटा आज से लेकर +1 के एंड तक वट एवर आई विल टीच यू वो इस डेफिनेशन में से निकलेगा 90%। 10% पार्ट अकाउंटिंग का होगा, वो अकाउंटिंग का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, पर अभी मैं उसमें नहीं जा रहा चाहता, ये फिर कभी किसी और डे लेंगे। मैं आपको पीपीटी के अंदर लेके आता हूँ, ये हमारा फर्स्ट पीपीटी है। ऐसे हम कुछ पीपीटी शेयर करेंगे हर चैप्टर की आपके साथ। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है, ये देखो बेटा, अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, बिकॉज अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट का नेम है। नोट्स हो रहे हैं सबको ना? Yes, sir. Yes, sir. अकाउंटेंसी बेटा एक बहुत बड़ी टर्म है, जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है, यूनिवर्सल है वो, ऐसे बेटा अकाउंटेंसी भी एक सब्जेक्ट है, इट्स यूनिवर्सल। आपको वर्ल्ड के हर कॉर्नर में मिलेगा ये सेम मीनिंग। इट्स ए वाइडर अप्रोच देन अकाउंटिंग। इसमें क्या इन्वॉल्व है? इट इन्वॉल्व्स ऑल नॉलेज, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स। जैसे साइंस में क्या इन्वॉल्व है बेटा, वो जो तुम बायो में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वो सब कुछ साइंस में लिखा हुआ है। तो अकाउंटेंसी का मीनिंग हमने आज देखा। फिर अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, किस चीज की? प्रिंसिपल्स की और टेक्निक्स की। और ये प्रिंसिपल और टेक्निक्स हम कहाँ यूज करते हैं? कहाँ यूज करते हैं? बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग। तो पहले हम इन वर्ड्स को एक एज ए लेमैन समझ रहे थे, एक पेपर पे लिख के देख रहे थे, आज वो हमारी नॉलेज का पार्ट बन गए 3 वर्ड्स। ये हमारे फर्स्ट 15 मिनट्स का लेक्चर था बेटा। जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे हमारी ये पीपीटी चलेगी, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। उसके बाद बेटा बुक कीपिंग का मीनिंग आता है, जो हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है ना, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, पर नोट्स में एक लिमिटेड लिखा हुआ है। फिर अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग इज ए ब्रॉड टर्म इन एडिशन टू बुक कीपिंग। पहले बुक कीपिंग होती है, उसके बाद जाके अकाउंटिंग होती है, जिसका कुछ और मीनिंग है, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। कौन सी पार्टीज बेटा? जब आपका रिजल्ट आता है तो कौन इंटरेस्ट होता है रिजल्ट में? योर स्कूल, योर क्लास टीचर, यू, योर पेरेंट्स, योर कोचिंग सेंटर, योर बुआ जी, योर मामा जी, ये सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है सब लोग आपसे पूछते हैं, बेटा हाउ मच यू स्कोर्ड, कितने % मार्क्स आए बेटा 10th में। हर कोई आपसे पूछेगा, आपका नेबर क्या, आपके हर कोई पूछेगा, कि सब लोग इंटरेस्टेड हैं आपके अंदर, तभी तो पूछ रहे हैं। जो इंटरेस्टेड नहीं आपके अंदर, वो कभी पूछेगा नहीं कि आपका रिजल्ट क्या आया, है ना। तो दैट्स वाई दीज आर द पार्टीज जिनको हमने रिजल्ट्स बताने होते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस की कई पार्टीज हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगा आज, इसलिए मैं बात नहीं स्टार्ट कर रहा। ये अकाउंटिंग का बेटा मीनिंग है, हम आगे आके करेंगे। देन फिर नोट्स में भी और पीपीटी फॉर्म में भी। पीपीटी थोड़ी सी बेटा इंटरेस्टिंग हो जाती है, पढ़ने का दिल करता ज्यादा। नोट्स एक फिर भी एक सिंगल वर्ड फॉर्मेट होता है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस आता है, तो आज अभी आप रीड नहीं करोगे इसको, ये अभी हमने थोड़ा बहुत किया कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है, बुक कीपिंग के अंदर ये सब होता है। अभी आपको ये सारा मीनिंग शायद समझ नहीं आए, पर आगे जाके आ जाएगा। और अकाउंटिंग में इन एडिशन टू दैट होता है, बुक कीपिंग तो होती है, बिकॉज बुक कीपिंग ही अकाउंटिंग में कन्वर्ट होती है। जैसे बेटा केमिस्ट्री में साइंस इन्वॉल्व है कि साइंस में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है? साइंस में केमिस्ट्री। यस, तो बेटा अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी इन्वॉल्व है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पहला पार्ट है, बट अभी हम और ज्यादा रीड नहीं करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा बताया बेटा आपको आज, जिसको हम इंट्रो बोलते हैं। वो डिटेल में जाना मतलब तो पूरा डिफरेंस बताना, जो आपको समझ भी नहीं आएगा आज, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, यू सी व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, तो मैंने उस पर बात की आपसे। तो इस पीपीटी के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, मैंने वो आपके सामने एक लेक्चर फ्रेम किया। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, हम सोचते हैं ना क्या है ये, आइडेंटिफाइंग ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसका मीनिंग है बेटा, पहले हम ये डिसाइड करते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगी। कौन सी होगी बेटा? जो मनी टर्म्स में है। कौन सी? जो
किसमें है? Of financial. नेचर में है। और इसके अंदर एक और चीज होती है जिसका हमारे पास एक प्रूफ है। जैसे सपोज आपने गुड्स परचेज की, आपने फर्नीचर परचेज किया, आपने मोबाइल परचेज किया, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये मोबाइल आपका है? तो आपको उसका क्या मिला होगा? बिल मिला होगा। तो बिल जिसके नाम पे है बेटा, मोबाइल उसी का है। तो बेटा ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन का एक रिटर्न प्रूफ होता है। तो जिस ट्रांजैक्शन का एक रिटर्न प्रूफ है उसे ही रिकॉर्ड किया जाता है। जिस ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। ये हमारा पहला स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा वो मनी टर्म्स होनी चाहिए। तीसरा वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? रिकॉर्डिंग दैट ट्रांजैक्शन इन जर्नल, या जर्नल का एक और नेम है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडायरी। हाँ, ये सब वर्ड्स न्यू हैं आपके लिए आज, बट आप देखो ना बेटा यही आपका सिलेबस है। एक दिन ऐसा होगा बेटा कि हम 2 वीक्स सब्सिडरी बुक्स पे लगाएंगे, 1 मंथ किस पे लगाएंगे? जर्नल पे। फिर हम लेजर पे टाइम लगाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, लिखा ना प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट। आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव सम अवेयरनेस ऑफ दीज वर्ड्स इन टुडेस क्लास। थोड़ा समझ गए हो गया? अब आपके सामने कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड आएगा, ट्रेडिंग वर्ड मैंने बताया नहीं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इसका कंप्लीट नेम है। तो जब आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आएगा तो आपको थोड़ा बहुत याद आएगा कि हाँ सर ने कहा था यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। फिर आपके सामने कभी बैलेंस शीट आएगी तो आपको याद आएगा कि हाँ यहाँ पे सर ने कहा था कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं मेरी। बेटा उसके बाद फिर और बहुत कुछ होता है। तो इस लेजर के बाद पहले 4 स्टेप्स किसके अंदर आते हैं? बुक कीपिंग में। और 5th स्टेप पे बुक कीपिंग एंड होती है ट्रायल बैलेंस बनने तक, मतलब यहां तक बुक कीपिंग होती है, यहां तक एग्जैक्टली जहां पे वो ओवर हुई वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होगी बेटा, एग्जैक्टली वहीं से होगी शुरू। जैसे आपके घर के आगे की रोड जहां खत्म होती है वहीं से आपका घर स्टार्ट होता है। आप अपने घर से बाहर निकलते हो आपकी स्ट्रीट आ जाती है, स्ट्रीट से अंदर एंटर करते हो आपका घर आ जाता है, कोई गैप थोड़ी ना बीच में। तो ऐसे ही ट्रायल बैलेंस तक फर्स्ट 5 स्टेप होते हैं बुक कीपिंग। आगे जब बढ़ते हैं ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, फिर उसके बाद एनालिसिस होते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स होता है, रीजंस देखते हैं प्रॉफिट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर उनको हम इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करते हैं। ये सब कुछ बेटा वाइडर टर्म है अकाउंटिंग, इसे हम +2 में सीखेंगे। ये पूरा सिलेबस +2 का है। +2 में बेटा हमारे पास 3 बुक्स हैं, 3 की 3 बुक्स अकाउंटिंग पे बेस्ड हैं। पार्टनरशिप के अकाउंट्स, कंपनीज के अकाउंट्स, इस पे बेस्ड है हमारी बुक्स। तो वहां बहुत एडवांस में सिलेबस आएगा, तो वहां वही बच्चा सक्सेसफुली वर्क कर पाएगा जिसे +1 में बुक कीपिंग आती है। आप यहाँ वीक रह जाते हो तो फिर आगे जाके वो प्रॉब्लम हमेशा आती है। तो इसलिए ये पार्ट बेटा +1 में भी है, थोड़ा सा है +1 में, 1-2 चैप्टर्स डिटेल में +2 में आएगा। आई थिंक आप थोड़ा अवेयर हो गए आज क्या है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग सिलेबस, अकाउंटिंग प्रोसेस। फिर बेटा टिपिकल थ्योरी आ गई जिसको अभी हमने आज स्टार्ट नहीं करना कि अभी तो कोई फायदा नहीं ज्वाइन करने का किसी को। तो यहां से बेटा टिपिकल थ्योरी आ गई कि अब जो मैंने ऊपर बोला था आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या है, फिर उस पर एक पीपीटी है, फिर मेजरमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है जिसको मनी टर्म्स में बोलते हैं, फिर रिकॉर्डिंग क्या है, देखो कितना बड़े आपके लिए लिखा हुआ है, फिर उस रिकॉर्डिंग के लिए कुछ रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट की। यहां से हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा बेटा कि अगर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो वो डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में रिकॉर्ड होगी। बेटा ये हमारे 2 वर्ड्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में बुक कीपिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि डेबिट का मीनिंग क्या है, डेबिट में क्या क्या आता है। डेबिट इन्वॉल्व्स एसेट्स, एक्सपेंसेस, आज हमने इन वर्ड्स को यूज किया था। लायबिलिटीज, जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है, हमारी बिजनेस की रेवेन्यू मींस इनकम्स। ये 5 वर्ड्स बेटा हम अपनी बुक कीपिंग में यूज करते हैं, तब जाके हमें समझ आता है कि हमें बुक कीपिंग कैसे करनी है। आज तो हमने सिर्फ ये समझा कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, और जब बुक कीपिंग होती है तो प्राइम बुक कौन सी है, ओरिजिनल बुक कौन सी है, उनके क्या नेम्स हैं, राइट। अब एक सिस्टम को समझा और आगे क्या क्या होगा। दैट वाज ए इंट्रो लेक्चर। लेकिन जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंट्रो नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास में सीधा हम कहाँ चले जाएंगे कि भाई बुक कीपिंग में ये बताओ रिकॉर्डिंग होती कैसे है। क्योंकि इसके पहले जो 2 स्टेप हैं, फर्स्ट 2 स्टेप्स जो बेटा जो है, देखो इधर स्टेप 1 ये थ्योरेटिकल है,
आइडेंटिफाई करना, जैसे आप एक मॉल में एंटर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, आपको स्कैन किया जाता है कि आप कोई क्रिमिनल तो नहीं हो, आपकी पूरी बॉडी स्कैन होती है, आपका लगेज स्कैन होता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। और फिर जब जाएगा तो वो जाएगा जिसके पास मनी है, पैसा है भाई, पैसा। मॉल में कौन जाएगा? जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा अंदर जाकर? थिएटर में मूवी कौन देखेगा? जिसके पैसा है। तो पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको जाने के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए, और जिस ट्रांजैक्शन में मनी नहीं है उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये 2 स्टेप्स बेटा थ्योरेटिकल हैं, ये थ्योरी है, मैं जब भी समझाऊंगा थ्योरी में समझाऊंगा, और थ्योरी क्लासेस हमारी सेपरेट होती हैं। अगर आप हमारी मोबाइल ऐप पे जाओगे तो मोबाइल ऐप पे आपका लास्ट ईयर का पूरा सिलेबस रिकॉर्ड हुआ है, तो वहां आप देखोगे वहां थ्योरी क्लासेस के नेम से एक अलग से फोल्डर है, वहां थ्योरी क्लासेस हैं चैप्टर बाय चैप्टर। वी डिवोट 1 to 2 months, 2 months ऑलमोस्ट ऑन थ्योरी, क्योंकि +1 में कोई थ्योरी पे वर्क करता ही नहीं है। वी डू वर्क दैट बेटा, वी डू दैट वर्क। जब हम उस पर वर्क करते हैं तो जाके आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो थ्योरी क्लासेस हमारी अलग से होती हैं, वो टिपिकल थ्योरी के ऊपर होगी, बट वो तब होंगी जब एटलीस्ट आप 2 या 3 चैप्टर्स न्यूमेरिकली कर लोगे, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी थ्योरी। देन फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। तो माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी फ्रॉम हियर बेटा, रिकॉर्डिंग्स क्या है, व्हाट इज रिकॉर्डिंग, और उस रिकॉर्डिंग को करने के लिए हमें 2 वर्ड्स को समझना है। कौन से 2 वर्ड्स हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। ये 2 वर्ड्स बेटा सबको आते हैं। मींस आपकी फैमिली में जो भी मनी से डील करता है, जिसका बैंक अकाउंट है, उसको पता है डेबिट क्रेडिट क्या है। अगर आपके अकाउंट में से पैसा कट गया बैंक से तो आपको मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद स्कूल फीस। और जब आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में सैलरी आती है तो आपके बैंक का मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट, क्रेडिट। यस, योर अकाउंट Credit. हैज बीन क्रेडिटेड। मैं बेटा इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आपका एक क्रेज होना चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। यू शुड वेट कि नेक्स्ट क्लास में हम ये 2 वर्ड सीखेंगे जिसको हम आज तक सुनते आए हैं सर। आपके पेरेंट्स के मोबाइल में जाओ और देखो जहां पे बैंक के मैसेज आते हैं, उस हर मैसेज में डेबिट क्रेडिट का डिस्क्रिप्शन होगा। योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद बैंक चार्जेस और ₹20, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 5000। तो जब जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा ऐड होता है उसे क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स की इनकम होती है, रेवेन्यू होता है। और जब जब आपके बैंक में से पैसा कटता है वो आपके पेरेंट्स का एक्सपेंस होता है। तो हर जगह काउंटिंग है बेटा, घर में भी काउंटिंग है, बैंक में भी। तो ये तो मतलब ही नहीं हमें समझना है। और आई विल सी कैसे समझ नहीं आता, मुझे आपके उस इंटरनल नॉलेज में से तो निकालना है, कौन सा मुझे कुछ नया सिखाना है। दैट इज द वे ऑफ टीचिंग। तो डेबिट क्रेडिट वर्ड को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो नोबडी विल मिस द क्लास, अदर्स भी ज्वाइन करेंगे आपकी क्लास को जो आज किसी रीजन से नहीं कर पाए, वो ये सब रिकॉर्डिंग देख लेंगे। इसलिए आज मैंने सिर्फ इंट्रो रखी है, हम डेबिट क्रेडिट तक नहीं पहुंचे। तो इस तरह से बेटा हम रिकॉर्डिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। बिकॉज अगर मैं अपने नोट्स की बात करूं, ये हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, क्योंकि जो हमें एग्जाम में लिखना है, पीपीटी तो समझने के लिए ना, बट जो एग्जाम में लिखना है वो ये नोट्स हैं, इनमें से हम याद करके जाएंगे। बिकॉज +1 में 30 to 40 मार्क्स का थ्योरी आता है एग्जाम में। आपका पेपर बेटा 80 मार्क्स का होता ही है, उस 80 में से 30 मार्क्स की अगर थ्योरी आ गई, 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, तो कितना ज्यादा वेटेज है बेटा, 30 मार्क्स आउट ऑफ 80। बाकी 50 मार्क्स से न्यूमेरिकल है। तो +1 में थ्योरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये थ्योरी सीखने का यही टाइम होता है। तो हम कहीं भी क्रैम नहीं करेंगे, हम उतना ही 30 मार्क्स का मतलब हमारे सिलेबस के 2 मंथ्स हम थ्योरी पे लगाने जा रहे हैं। और यहाँ पे हर स्टूडेंट वीक होता है, क्योंकि स्कूल और ट्यूशंस दोनों ही इस पे वर्क नहीं करते, बट वी विल डू। तभी आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा अकाउंट्स के अंदर। तो इसलिए बेटा अब यहाँ पे मैं क्लास को ओवर करूंगा इस वर्ड के साथ कि आज मैंने बेटा एक मिनट, आज मैंने बुक कीपिंग का मीनिंग क्या बताया? इट इज सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। बस हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इस रिकॉर्डिंग के ऊपर ही हमारा एक चैप्टर बन जाएगा जर्नल, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जहां 2 वर्ड्स आएंगे। कौन कौन से? डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। और ये दोनों चीजें बेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपने ज्वाइन किया अभी न्यू। आपके ये थ्योरी नोट्स, इसको ज्यादा नहीं पढ़ना, जस्ट 1-2 ये जितना हमने किया है, साथ में वो पीपीटी। और रिवाइज हमने कर ही लिया ये सब कुछ। नाउ यू कैन आस्क एनीथिंग। यस बेटा। कुछ पूछ रहे थे एनीवन? Yeah, sir. Actually, I contacted you a few days ago about the app. I told you that I wasn't working, so I rechecked my phone settings and everything, but it Okay. still didn't
happen to work. Okay. So you said that if it still does not work, you will provide me with some link Sure, with the beta. help of which I can be accessing the previous lectures. Of So course, beta. Sure. if you can provide. No issue, beta. Surely I will share some links, but first of all, I will analyze what's the problem. Where's the problem? Suppose it happens sometimes. Maybe there's a change of setting in your mobile. So let's see. We can talk after 8:30, है ना? My class will be Yes, over. sir. My last class will be over at 8:45. So after that we can discuss, and then I will share the link. So आज की क्लास का लिंक भी आ जाएगा, एंड लास्ट वीक का रिकॉर्डिंग का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ. डोंट Excuse me, sir. यस गुरप्रिया. Sir, same problem is occurring here. जब मैं ऐप खोल रही हूँ मुझे कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल पा रही. बेटा उसमें एक रीजन होता है, सेटिंग का ही होता है. मैं करवा दूंगा. आई थिंक 99% वी विल बी सक्सेसफुल इन चेंज ऑफ सेटिंग. तो जैसे वो सेटिंग चेंज होगी आपको शो हो जाएगा. और समटाइम्स हमारे एंड से भी होता है कि हमारे एंड से आपका जो आईपी एड्रेस है वो लिंक नहीं हो पाता समटाइम्स. इट्स टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं, और इसके लिए हमारे पास पूरा आईटी टीम है. कोई प्रॉब्लम नहीं. हमारा कंपनी है बेंगलोर में जिसके अगर टाइप है हमारा, तो आपके ये प्रॉब्लम्स मैं उनको बोल दूंगा. अगर वो जो भी बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, बट सॉर्ट आउट हो जाएगा. ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा. थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो जिन्होंने हमारी मोबाइल ऐप को यूज किया आज तक. कभी ये इशू नहीं आया. कभी आता है तो रिजोल्व हो जाता है. लेट्स सी व्हाट्स द इशू एंड वेयर इज प्रॉब्लम. चेक करते हैं. ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई डोंट वरी, मैं आपके सीधा लिंक शेयर कर दूंगा. Sir, I have some मतलब 1 or 2 doubts related to today's topic. यस Can I बेटा, discuss श्योर now? मोस्ट वेलकम. बताइए बेटा. सर मुझे डिस्कस करना था जैसे बिजनेस और प्रोफेशनल में मुझे डिफरेंस नहीं समझ आ. जैसे प्रोफेशनल मीन्स कि इसमें फीस वगैरह होती है, और बिजनेस में जहाँ पे लॉस और प्रॉफिट होता है. नहीं ऐसा But नहीं. जैसे ऐसा बेटा पहले इसको करेक्ट करते हैं. बिजनेस की जो इनकम होती है उस इनकम को बोलते हैं सेल्स. वटेवर सेल्स, हम बोलते हैं ना आपके बिजनेस की कितनी सेल है वन डे में, तो उसको सेल बोलते हैं बेटा. सेल्स, टर्नओवर. और जो प्रोफेशनल होते हैं उनको बोलते हैं व्हाट इज योर फीस. मैं वन मंथ में कितनी फीस अर्न कर रहा हूं, वो मेरी मंथली इनकम है. और बिजनेस 1 मंथ में कितनी सेल कर रहा है, वो उसके बिजनेस की मंथली इनकम है. फिर फीस में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, वो सेम प्रोसेस है. सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, वो सेम प्रोसेस है. जैसे हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा, और यहां जैसे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे हमारे प्रोफेशन का प्रॉफिट आ जाएगा. एवरीथिंग इज सेम. डिफरेंस कुछ नहीं है. एक लिटिल बिट डिफरेंस है जो आगे जाके थ्योरी में समझाएंगे कि प्रोफेशनल्स की अकाउंटिंग में कैश बेसिस चलता है. अब आप ये समझ नहीं पाओगे ना आज, तो बेनिफिट नहीं है बात करने का. ये कैश बेसिस होता है बेटा एक, और बिजनेस में होता है एक्रूअल बेसिस. अभी ये सब वर्ड्स आपको समझ से बाहर हैं, तो वो एक बेसिस है रिकॉर्ड करने का. मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा. एक टीचर अपनी इनकम तब मानता है जब उसको फीस मिलती है. गॉट इट? मैंने क्या बोला? यस सर. अभी आप मेरे साथ 1 मंथ स्पेंड करोगे, आफ्टरवर्ड्स अगर आप मुझे ज्वाइन नहीं करते, आप मुझे इंस्टॉलमेंट ऑफ फीस नहीं पे करते, या आपकी फीस नहीं आती, तो मैं आपको कभी रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे फीस मिली नहीं आपसे कुछ. प्रोफेशनल्स अपनी इनकम तब मानते हैं जब उनको कैश मिल जाता है. अब अगर आप मेरे से 1 मंथ पढ़ लो या 1 ईयर पढ़ लो, आप फीस नहीं देते तो आपको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा. जबकि जो बिजनेस होता है बेटा वो बोलता है अगर हम गुड्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं, मीन्स उधार करते किसी के साथ, पहले हम उसको सर्विस देते हैं, फिर अगर वो पैसा नहीं देता तो वहां पर उस पैसे को रिकॉर्ड किया जाता है कि हमने उससे पैसे लेने हैं, और फिर उस पर लीगल केस किया जाता है पैसा लेने के लिए. मीन्स बिजनेस का अलग एक व्यू है एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए. बट एंट्रीज रिकॉर्ड कैसे होती हैं? डेबिट क्रेडिट से. वो सेम है. मीन्स एक छोटा सा लिटिल भी डिफरेंस है जो मैं आपको 10 to 15 मिनट्स में समझा सकता हूँ आगे जाके. अदरवाइज प्रोफेशन या बिजनेस में बाय द नेचर डिफरेंस है. प्रोफेशन ओनली सर्विसेज देते हैं, पर बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देता है. जैसे बैंक सर्विस देता है, कंपनीज अगर सपोज आप डीटीएच सर्विस की बात करो, टाटा स्काई अगर आपके घर पे है तो वो एक सर्विस मिल रही है, लेकिन वो एक बिजनेस है, वो प्रोफेशन नहीं है. प्रोफेशन कुछ एक डिफरेंट टाइप के पर्सन का होता है जो प्रोफेशनली आर्टिस्ट होते हैं, जिनके पास एक नॉलेज होती है. जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ये लोग प्रोफेशनल्स हैं बिकॉज अ नॉलेज इज वेस्टेड इन इनसाइड एंड दे
शेयर दैट नॉलेज विद यू। और डॉक्टर है बेटा, डॉक्टर क्या करता है, कुछ करता है डॉक्टर, वो आपसे फीस ले रहा है किस चीज की, आपको सिर्फ मेडिसिन रेफर करने की, बस और कुछ नहीं है उसका। वो आपकी रिपोर्ट्स स्टडी करेगा, मेडिसिन रेफर करेगा। उसने क्या किया बेटा, ना रिपोर्ट्स खुद बनाई, ना आपके लैब खुद किया चेकअप्स, ना मेडिसिन बनाई, उसने सिर्फ आपकी रिपोर्ट्स पढ़ के ये बताया कि बेटा आपको ये मेडिसिन लेनी है। इस चीज के डॉक्टर फीस लेते हैं, समझे ना ध्यान से। तो वो एक सर्विस दे रहे हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। और हम उनका क्यों इतना रिस्पेक्ट करते हैं बेटा, हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब है मेडिकल प्रोफेशन, एक डॉक्टर। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उस डॉक्टर की होती है, डॉक्टर के बाद टीचर्स का नंबर आता है। ये दो लोगों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, बिकॉज इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है जो ये लोग शेयर करते हैं आपके साथ, जिससे आप लोगों को वो डेवलप करते हैं। तो इसलिए इन लोगों को प्रोफेशनल कहते हैं। सिंगर के पास भी एक स्पेशलाइजेशन है, जिससे वो एक सॉन्ग की फीस ले रहा है, किसी एक एक्टर की फीस होती है। दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, दीज आर नॉट द नॉर्मल पर्संस। ये कोई ग्रोसरी शॉप नहीं है कि कोई भी ओपन कर लेगा। डॉक्टर जो बना है वो स्पेशलाइज पर्सन है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। एवरीवन विल नॉट बी एडवोकेट, टीचर। तो ये अलग है, तो मीनिंग अलग है, थ्योरेटिकली सब कुछ अलग है। बट जब अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं इनकी हम, वहां एक लिटिल बिट डिफरेंस है, उसके बेस पे वो डिफरेंस क्रिएट होता है। बट बाकी सब सेम है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए ओके, क्लास ओवर करो एवरीवन। एनीथिंग एल्स? ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू। जैसे आप एक मिनट सर, जैसे बेटा आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो बुक कीपिंग बेटा का एक मिनट, रिकॉर्ड है बेटा एक मिनट, वो बुक्स गुड प्रिया होल्ड इट, बिकॉज आई हैव माय नेक्स्ट क्लास एट 5 o'clock। तो 5 हो चुके हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, डोंट वरी। पहले हम हाफ एन आवर डाउट्स ही लेंगे आपके, बट अदरवाइज तो जितना मर्जी चलते रहे आगे, ये ओवर नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ना। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है जस्ट, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में पक्का लेंगे, डोंट वरी। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। नेक्स्ट बैच इज वेटिंग ना। ओके, Thank you, sir. वेलकम एवरीवन। Thank you, sir. God bless you all. I hope you enjoyed all. Okay, beta. Thank you, sir. Bye bye. Welcome.